warm welcome to all the parents. Good afternoon, parents. We'll wait for some time so that all the parents get logged in. A warm welcome to one and all from Forum for Autism. Good afternoon, parents. Much awaited topic, wills and trusts. A common question in all our parents' minds. So again, we meet one Sunday afternoon with a new topic, with a nice topic to discuss and clear our doubts and moving ahead. To begin with, let's talk about Forum for Autism, what Forum is about and what work we do. Forum is a parent support group which started some 2 decades back with an aim and goal with autism awareness, empowering parents, advocating for the rights of people with autism, and providing financial assistance. FFA is a vibrant parent body. Parents have joined FFA in last 20 years and strengthening the whole forum. We have two libraries with more than 500 books, one at Kulaba and one at Vashi. We conduct parent training workshops and seminars. And keeping the current scenario in mind with the COVID thing, we are having these webinars. We are meeting every Sunday afternoon with new topics, new discussions. We have many people joining us on board and sharing their views and ideas with us. We have a database of parents and professionals who stand by us at times of need. We provide sponsorship to unaffording families. Those parents who find it difficult to provide therapy or education to their children can avail the facility by contacting Priyanka. Every year we participate in the Dream Run of Mumbai Marathon. We have many of our adults and children who would run the Dream Run, and the whole idea behind this was creating awareness about autism. And in this process, we always had our cause ambassadors, Sanjeev Kapoor and Harsha Bogle, who shouldered the responsibility with us. Glimpses of our workshops that had been in the past. This is one which we have developing a person-centric life plan by Sushma Nagarkar. This is a cultural event. A cultural event is a platform where we have our adults and young children come and perform on whatever stage available. If you can see, these pictures are taken during the celebration of Disability Day at Malad Masti, which happened on the streets of Malad behind Infinity Mall. And you can see the amount of audience and the interaction that happened. Parent to Parent is a platform where we have parents who come and share their experiences, their knowledge with the other parents, enabling them in the process or in the journey of parenthood. These are some of the webinars which have happened in the past, and they are on FFA's YouTube channel. So please go and subscribe that channel. So every video that is uploaded on YouTube, you all will get a notification of the same. And second, you can even go through these webinars, and if you all still have doubts or questions to be answered, please feel free to email FFA. We'll try to get back your doubts. How do you connect with us? To connect with us, this is a number given through Facebook. Parents, we would like you all to come ahead and be a part of forum, help us, support us, and strengthen us.
I would like to share something about Ask. Ask is an adult support kendra that provides counseling facilities to people with disability and even their caregivers. Munira Pitalwala's number is shared on the screen. Please feel free to contact her if you want to avail the service, or you all can even get in touch with Forum by contacting Priya. An appeal for donation. We really thank you for the overwhelming response for the webinars, and we would also ask you all to spread the news, spread the awareness of autism, and also create a word for appeal for donation for Forum. You all can donate on the link which is provided on United Way Mumbai. All our donations are eligible for tax exemptions. The next webinar which will be coming up is on a Sunday and a Tuesday by Sunita Lele, and we are going to work on working towards ADL. ADLs are activities of daily living. Saying this, we come to our 31st webinar. I would first like to call Chitra Iyer, our trustee of Forum for Autism and CEO of MFA. Chitra, can I have you on? Yeah. Hi, Yeah, hi Darshana. Chitra, hi. I really want to thank you for having such good topics for us, brainstorming us, making us think differently, and also, yes, for helping us have these beautiful webinars through MFA. So thank you very much, and over to you, Chitra. Thank you so much, Darshana. Uh, very, very, very warm afternoon. We really, I don't know what the weather is trying to do to us. On the one side, we feel that the rains are still on, and then again, we're feeling extremely hot, and this humid weather is really troubling all of us. That said, thank you so much to all the parents who have signed in from all over India, as well as a couple of families that have signed in from out of India. Um, we've been trying our best to figure and understand what are the issues that we should be covering as part of Forum for Autism. And happy to get you this webinar in here today, because this is something which is prominent and on top of our minds for all of us. Uh, those who are parents, those who are siblings, those who may be, looking after special needs, especially autism, since we also land up getting a lot of other families with different special needs or mixed special needs attending our webinars. Thank you so much, and thanks a lot for the feedback coming in. We genuinely appreciate it, and would request you to please do send in what further you would like to know from us. So, diving straight to our topic for today, I'd like to request Priya to please turn on your video. Priya Vatwani represents iPro Bono. We have a long association with them, and in the past we have uh, done a workshop like this where we specifically covered the needs, all the legal needs that could come in a special needs family's life. And iPro Bono has been one such organization that helps with help families that are marginalized and would need special assistance. Thank you, Priya, and I would like you to please introduce yourself and share your work with iPro Bono. Thank you. Hello to all the parents and the families. Thank you for joining us today this afternoon. जैसे चित्रा जी ने बताया, iPro Bono एक non-profit है. We are a non-profit company, and हमारा purpose यही होता है कि हम जो vulnerable communities हैं या other non-profit organizations and CSOs हैं, हम उन्हें legal assistance provide करें. ये हम दो तरीकों से करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. एक तो हमारी टीम iPro Bono की जो लॉयर्स और एक्टिविस्ट से बनी है, और हमारा नेटवर्क जो बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑफ ऑल द लॉयर्स विच इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया बट ग्लोबल. तो हम ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट्स करते हैं. ऑफ कोर्स इंडिया में हमारा मेजर काम चलता है इन लिटिगेशन एंड इन प्रोजेक्ट्स लाइक helping vulnerable communities in such workshops and providing any legal assistance that a CSO or a non-profit would require. So मैं और वक्त नहीं लूँगी. मैं एक प्रोग्राम एनालिस्ट हूँ और मैं भी एक लॉयर हूँ iPro Bono की टीम से. और मैं बस हमारी वेबसाइट लिंक कर देती हूँ चैट बॉक्स में इन केस आपको और इंटरेस्ट है जानने का. एंड ओवर टू यू चित्रा. थैंक यू. Thank you so much, Priya. Thanks a lot. And I'm sure that this association of ours is going to continue. I mean, we started and then we took a break and we are back.
And Yes. this time we will definitely see to it about how we can help a lot of families who genuinely need support, and we will reach out to you for them. Yeah. Sure. Yes. That I'd like to welcome Mr. Anuj Shah and Mr. Sanchin Bandavat on the screen. Yeah. Thank you, Anuj. Thank you, Sachin, for giving us your valuable time today. Both are lawyers with Khaitan and Company. Anuj is a senior partner and has been kind enough to take out his time and share with us his insights in this space. And Sachin is going to be conducting the entire workshop today. And we have requested that आप दोनों हिंदी में बात करोगे and would like to cover all the aspects possible in this time. One request to the entire attendees is that there may be a lot of questions. I can see that the questions have started coming in already. Please listen to them. Please go through the entire presentation. Or any questions you have, please do post it in the Q&A box. You can see where the Q&A button is. Please put your question there. As far as possible, we will answer all the questions today. जो नहीं जम रहा है वो बाद में फोरम फॉर ऑटिज्म के थ्रू आपको उनका आंसर्स हम डेफिनेटली वी विल check with them and come back to you. To quickly just tell everyone why we are here, right? And just to catch up on the classic fears that all of us have as parents, right? Is that all of us are scared about what after us, especially this entire audience of attendees is extremely worried about what will happen after us. And we have heard horror stories. We don't know what to do. We don't know how to go about it. We know some people who have done it right. We know that some people have got it completely wrong. And the classic questions of who will take care of my child, why will they take care of my child, and whom am I supposed to think about is what completely is the pressing need in everyone's mind. As the child starts aging, this becomes even more, right up front in everyone's eyes and everyone's mind. We sincerely request families that it is our responsibility, right, for us to get this done and get it sorted for our children. Whether it is our family who's going to take care of the child, or it is our second child who's going to take care of the special needs child, or it is if they are there are friends, or it's an institution that we're going to think about in terms of going back to taking care of our children. There are ways and means of getting um, getting things in place so that all of this moves well. And that's where we are today, about what you need to do when you're alive, what do you need to do therefore that it goes seamlessly and it will flow well when we are not there. That's why we have this very, very important webinar today, and I'd request Anuj to please take over and start the webinar. Thank you. Thank you, Chitraji, and good afternoon, everyone. I'm a partner with Khaitan and Company, और मेरा colleague Sachin, हम दोनों मिलके आज का webinar conduct करेंगे. At the outset, हम लोग we are very grateful to have this opportunity because ये topic हम दोनों के heart के बहुत close है. हम लोग बहुत clients को advise करते हैं more on a professional basis. Large wealthy families who are always looking to inherit wealth, ये structures से deal करते हैं, various complications से deal करते हैं कि कैसे wealth एक generation से दूसरे generation में flow करे. हम लोगों ने उतना vulnerable communities के लिए specifically हमारे as a professional engagement तो उतना काम नहीं करते, but as part of our social obligation, this is something हम लोग बहुत enjoy करते हैं. Mostly what हमारे experience में हमने realize किया है कि complications कैसे भी हो, आपका एक particular reason हो because एक बच्चा है या एक adult है जिसको special care की ज़रूरत है, और be it the side जिस पे हम लोग ज़्यादा advise करते हैं professionally, wealthy families या large asset holders, multiple companies हैं, multiple बच्चे हैं, उनमें कैसे asset बटेगा, but कहीं ना कहीं complications same है, concerns same है, insecurity same है. So आप
आप रियलाइज करेंगे कि विल्स और ट्रस्ट्स, जो अभी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है. वन शुड कंसिडर दो सॉल्यूशंस. मोर एंड मोर आप रियलाइज करेंगे, एटलीस्ट हमारा सजेशन यही होगा कि देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल. हर फैमिली की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती है. These are, please consider them only as options. ये जरूरी नहीं कि किसी फैमिली को विल और ट्रस्ट सूट किया तो आपके कॉन्टेक्स्ट में भी विल और ट्रस्ट सूट करेगा. आपको प्लानिंग, जैसा हम लोग बोलते हैं कि प्लानिंग इज द मस्ट, एंड रियलाइजिंग कि व्हाट इज मोर स्पेसिफिक टू यू, और आपको क्या सूट करता है, आपके हालात कैसे हैं, आपके कंसर्न्स क्या हैं, उस बेसिस पे. बट ब्रॉडली हमने देखा है कि विल्स एंड ट्रस्ट बहुत लार्ज हद तक बहुत सारे इन इश्यूज को एड्रेस करते हैं, और उनको फिर डिटेल डिस्कशन के साथ विल कैसा बने, ट्रस्ट कैसा बने, उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं, सो दैट द ऑल द कंसर्न्स आर एड्रेस्ड. एक सजेशन हमारा ये रहता है कि पीपल टेक अ वेरी एम्बिशियस अप्रोच. जब लिखने बैठते हैं विल या ट्रस्ट तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि हर स्मॉल से स्मॉल इशू सॉर्ट आउट करें, और उस ओवर एम्बिशन की वजह से बहुत कुछ अचीव नहीं हो पाता है. सो हम लोग वन ऑफ द रिकमेंडेशंस दैट आई वुड गिव एट द स्टार्ट कि आप इसको वन स्टेप एट अ टाइम वाला प्रोसेस ले. हमारे लाइफ टाइम में हमारे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है. वी कैन कंटिन्यू टू चेंज द विल, वी कैन कंटिन्यू टू चेंज द ट्रस्ट, और अपडेट करते जाएं. तो एक स्टार्टिंग स्टेप ले, बेसिक पैरामीटर्स लें, बेसिक कंसर्न्स एड्रेस करने की कोशिश करें, और फिर वहां से हम लोग बिल्ड करते रहते हैं. और हमने देखा है कि फैमिलीज जो ऐसा करती हैं, दे आर मच मोर सक्सेसफुल, कि आज कुछ बेसिक बना दिया रादर देन नॉट हैविंग एनीथिंग, और फिर उसको ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम्स हम लोग चेंज करते रहे और इम्प्रूव करते रहे, लोगों से डिस्कस करते रहे. आई थिंक विद दैट द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि प्लान करें अच्छे से, एम्बिशंस स्मॉल रखें, एक लिमिटेड फाइनाइट पीरियड के बारे में सोचें. 100 200 500 साल का ना सोच के यू नो कीप कि नेक्स्ट 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स का सोचें, और उस हिसाब से प्लानिंग करें. आज के वेबिनार में जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे, उनमें ये टॉपिक्स, जो की टॉपिक्स है, वो हम आपको बताएंगे. विल क्या होता है, विल कैसे ड्राफ्ट होता है, विल कितना सिंपल डॉक्यूमेंट है और कितना इजी है, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, हाउ क्विकली इट कैन बी पुट इनटू प्लेस. और थोड़ा और नुआंस जाके द अदर स्ट्रक्चर दैट विल डिस्कस इज अ ट्रस्ट. ट्रस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट इट सर्व्स, इट्स अ मोर वाइडर नेट, उससे ज्यादा कंसर्न्स और इश्यूज हैंडल होता है. तो लार्जली इन दो इश्यूज में हम लोग डेल्व करेंगे. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारी हालातों की वजह से वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट रहा है, बट उतना नहीं. आप यूएस यूके से कंपेयर करेंगे तो वहाँ रेगुलेशंस बहुत इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स हैं. समथिंग कॉल्ड एज अ पूल ट्रस्ट होता है, स्पेशल नीड ट्रस्ट होता है, गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स बहुत होती हैं. लोगों के लिए वो फैक्टर भी होता है कि हम ट्रस्ट बनाए तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स भी, इंसेंटिव्स भी कंटिन्यू टू फ्लो इनटू दोस ट्रस्ट. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो कंस्ट्रेंट्स है, बट मोर एंड मोर एटलीस्ट द गुड न्यूज इज कि व्हाट वी अंडरस्टैंड कि चीजें बेहतर हो रही है, गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट आ ही रहा है, डे टू डे थिंग्स आर ओनली गेटिंग बेटर, और पीपल आर ओपनली डिस्कसिंग दीज मैटर्स, एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर. हम लोगों ने कई एग्जांपल्स पुल आउट किया. नाउ ऑल ऑफ दैट अगेन आई सेड कि हर स्पेसिफिक फैमिली के इश्यूज डिफरेंट होंगे, बट सम ऑफ द एग्जांपल्स वी सॉ इवन इन लीडिंग फैमिलीज. जैसे हमने देखा सिल्वेस्टर स्टेलोन, उनके बेटे को ऑटिज्म था, 1982 में डायग्नोस हुआ. उन्होंने कुछ पब्लिक रिकॉर्ड अवेलेबल था कि ही इज डन अ डिटेल स्ट्रक्चर टू इंश्योर कि उनके लाइफ टाइम में उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. वेल्दी फैमिलीज के अलग बहुत इश्यूज होते हैं. टू गिव एन एग्जांपल, हमारे पास कुछ केसेस आए हैं कि ये कंसर्न रहता है कि किससे शादी होगी, वो लेडी निभाएंगी कि नहीं, वहां कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या, टू जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. सो हर सिचुएशन में कम्प्लेक्सिटी अलग अलग होता है, इसलिए हम लोगों को एक एक सिचुएशन एड्रेस करना होगा. हमने देखा टॉमी हिल्फिगर के बारे में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कि उनके सन को ऑटिज्म, उनकी डॉटर एंड स्टेपसन बोथ वे डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म. उन्होंने स्ट्रक्चर पुट इन प्लेस किया था. सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वी ऑल नो कि उनके बेटे को सेरेब्रल पैलेसी है.
उन्होंने कुछ हमने इंटरनेट पे देखा कि कुछ स्ट्रक्चर्स ही इज आल्सो थॉट अबाउट इट, बट ब्रॉडली सचिन अब आगे डिस्कस करेगा विल्स के बारे में और ट्रस्ट के बारे में, बट ब्रॉडली आप देखेंगे कि विल और ट्रस्ट एज अ प्रोटोटाइप वर्क वेरी वेल इन दिस सिचुएशन, और फिर उसको हम लोगों को अपने पर्टिकुलर सिचुएशन में फाइन ट्यून करना होगा. दैट इज द आर्ट. Sachin, with that, over to you. Thank you, Anuj. Hi all. Thank you so much for having us. हम during the course of the next 45 minutes to an hour discuss करेंगे how steps के through हम estate plan put in place कर सकते हैं. Before मैं detail में जाऊँ हर एक aspect के, मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि broad steps क्या होते हैं एक estate plan बनाने का. फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा है, जो आई थिंक मेजर हिंड्रेंस होता है किसी भी एस्टेट प्लान को बनाने के लिए, वो होता है उस सब्जेक्ट के बारे में बात कैसे की जाए. बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स भी जो इनफैक्ट काफी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं और उन क्लाइंट्स के पास एसेट्स एंड सब्सटेंशियल वेल्थ भी होती है, उसके बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि कैसे इस टॉपिक को फैमिली के सामने लेके आ जाए, कैसे बात करी जाए. पेट्रियार्कल फैमिली या मेट्रियार्कल फैमिली, स्पेशली अगर एक बच्चा है वो चाहता है कि उसके फादर ऑब्वियसली एक एज के हो गए हैं, उनसे बात कैसे की जाए कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स क्या होगा. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये मानना है कि सब्जेक्ट को ब्रोच करना, सब्जेक्ट को अप्रोच करना, अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को अप्रोच करना बहुत रेलेवेंट हो जाता है उस केस में. अगर आपको लगता है कि आपके अप्रोच करने से कोई मिसकंस्ट्रूइंग फैक्ट्स हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स या सिबलिंग को लग सकता है कि नहीं ये तो चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी एस्टेट प्लान पुट इन प्लेस करें, सब कुछ हमको ही मिल जाए या उसी को मिल जाए, इसीलिए वो चाहता है, रिकमेंडेड है कि आप अपने किसी ट्रस्टेड एडवाइजर को या आपके किसी फैमिली लॉयर को या किसी को भी बोले टू गिव द पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल एसेट, उसको एक नज करने के लिए. एस्टेट प्लान हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक को स्टार्ट करना एट दिस रेलेवेंट मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट इंपॉर्टेंट है. सेकेंड चीज जो हम देखेंगे एस्टेट प्लान बनाने के लिए वो होता है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कोलेट कीजिए. एसेट्स और लायबिलिटीज जनरली हर जगह फैले होते हैं, हम ज्यादा आइडिया नहीं होता है. आपके जैसे 4 बैंक अकाउंट हो सकते हैं, 5 म्यूचुअल फंड अकाउंट हो सकते हैं, एक प्रॉपर्टी कहीं हो सकती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी या फ्लैट कहीं और हो सकता है. एक एस्टेट प्लान को बनाने के पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक साथ लेके आए. आपने किसी को लोन दिया है, किसी ने आपको लोन दिया है, बैंक से कोई लोन बाकी है जो आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, वो आपकी लायबिलिटी है. किसी को आपको डेट या कुछ लिया है जो आपको देना है, वो सारा कुछ कोलेट करके आप एक साथ फॉर्मली अपने सामने रखिए और उस हिसाब से एस्टेट प्लान बनाने की कोशिश कीजिए. तीसरी जो रेलेवेंट चीज है, पर्सनल और सक्सेशन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जनरली आपकी फेथ या आपका रिलीजन एस्टेट प्लान को काफी इफेक्ट करता है. हम डिटेल में बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन के कोर्स में कि कैसे पर्सनल एंड सक्सेशन लॉज इफेक्ट करते हैं, बट ये ओवरव्यू देने के लिए है कि आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा एक एस्टेट प्लान बनाने के लिए. उससे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है विल या ट्रस्ट बनाना. ऑब्वियसली ये तो इस सेशन का मेन उद्देश्य है. विल या सेशन कैसे बनता है, विल या ट्रस्ट कैसे बनता है, वो हम डिटेल में बात करेंगे इस सेशन के बारे में. बट प्लानिंग करने के लिए विल एंड ट्रस्ट आर प्रॉब्ली द 2 सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने हमारे एक्सपीरियंस में देखे हैं. ट्रस्टेड एडवाइजर, आई थिंक हर पेरेंट के लिए, स्पेशली पेरेंट्स हु हैव स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, उनके लिए सबसे रेलेवेंट कंसिडरेशन होता है कि हमारे बाद हमारे बच्चे का जो कि एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड है या कोई भी चाइल्ड है, उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका ट्रस्टेड एडवाइजर कौन बनेगा, एक विल को एग्जीक्यूट कौन करेगा, उस बच्चे का गार्डियन कौन बनेगा, अगर आप ट्रस्ट सेटल कर रहे हैं तो उसका ट्रस्टी कौन बनेगा. एक केवियट बस ये हम देना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके जितना ध्यान कोई और रख सकता है आपके बच्चे का, तो हमारे एक्सपीरियंस में वो पॉसिबल नहीं है. बट गिवन द एंटायर टूल्स दैट वी हैव इन आवर हैंड, हम कोशिश करेंगे परफेक्ट सोल्यूशन लाने का. हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई जना अपॉइंट करें जो क्लोजेस्ट आ जाए, जो हमारे बच्चे का ध्यान रख सके. तो ट्रस्टेड एडवाइजर अपॉइंट करना बहुत रेलेवेंट है. एंड इसको आपको अभी से ध्यान में रखना पड़ेगा और अभी से उन लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, या उन लोगों से बात करनी होगी, या अपने बीच में बात करनी होगी कि यार ये हमारा ट्रस्टेड एडवाइजर बन सकते हैं या नहीं बन सकते.
कुछ क्रॉस बॉर्डर एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वर्थ कंसिडरिंग है। अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई सिबलिंग एक्सेट्रा बाहर या अब्रॉड सेटल हो रहा है या सेटल हो चुका है, कि आप उसको अपने एस्टेट प्लानिंग का हिस्सा बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो भी रेलेवेंट कंसिडरेशंस होते हैं। डिटेल में हम केस स्टडीज के थ्रू बात करेंगे इस बारे में भी, बट ध्यान रखिएगा वो कंसिडरेशन भी है। प्लान इंप्लीमेंट कीजिए, जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए। आज कर सकते हैं तो बेहतर है, कल कर सकते हैं तो और बेहतर है, बट आपको प्लान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए। और जैसा कि अनुज ने बताया, इंप्लीमेंट आज करने के बाद ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने विल बना दी तो वो विल बदली नहीं जा सकती या वो ट्रस्ट बदला नहीं जा सकता। ऑब्वियसली अगर आपने आज एक बेसिक डॉक्यूमेंट से विल बना के आपके एस्टेट के बारे में बेसिक प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंसेस लेंगे, एसेट्स आएंगे, लायबिलिटीज आएंगे, आप उस विल को या उस ट्रस्ट को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं, और आपके बच्चों के लिए, आपके डिपेंडेंट्स के लिए उनको रिव्यू करके, पीरियोडिकली रिव्यू करके ऑल्टर कर सकते हैं। तो अल्टीमेट थ्रस्ट इज कि प्लान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए और उस फाउंडेशन से आप आगे बढ़िए। उस कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं क्विकली बात करता हूं कि एक विल कैसे बनाई जाती है। विल बनाने के लिए एक यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट होता है विल। एक इंडिविजुअल एक विल बना सकता है। आप आराम से आपके घर पे बैठे हुए एक नॉर्मल पेन एंड पेपर लेके आपके जितनी भी एसेट्स हैं आपके जाने के बाद वो आप किसको देना चाहते हैं, किस प्रपोर्शन में देना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं। कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंसेप्शन होता है कि बिल तो सिर्फ स्टैम्प पेपर पे लिखी जानी चाहिए या स्टैम्प होनी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिल को स्टैम्प करना जरूरी नहीं है। एक सिंपल पेन एंड पेपर से जिस लैंग्वेज में भी आप मोस्ट कंफर्टेबल हैं आप बिल लिखिए। आप अपने एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कीजिए। एग्जीक्यूटर अमूमन वो बंदा होता है जो आपके जाने के बाद उस प्रॉपर्टी को आपके बेनिफिशियरीज, जिनको लेगेटीज कहते हैं, जो आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनको भी आप देना चाहते हैं, उन लेगेटीज को वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक एग्जीक्यूटर भी लेगेटी हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं एक बिल बना रहा हूं तो मेरी वाइफ एग्जीक्यूटर भी हो सकती है और मैं अपनी बिल के अंडर अपनी वाइफ को एसेट्स भी दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी प्रॉपर्टीज, जो आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज कोलेक्ट किए हैं, उन प्रॉपर्टीज को आप उस विल के थ्रू अपने लेगेटीज को देंगे। विल के थ्रू एक और चीज आप कर सकते हैं, आपके गार्डियन को अपॉइंट कर सकते हैं। गार्डियन वो होगा जो आपके जाने के बाद, या आपके, अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ है तो आप, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी वाइफ के बाद या आपके और आपकी वाइफ के बाद आपके बच्चों का ध्यान रखेगा, उनका गार्डियन बनेगा। अगर बच्चे माइनर हैं तो उस गार्डियन को आपके विल में आपने जो अपने बच्चे को एसेट दिया है तो वो भी सेफ कीपिंग के लिए मिलेगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर गार्डियन को कोई एसेट दिया जाता है तो गार्डियन उसको लेके जो उसकी मर्जी हो वो कर सकता है। उसको ऑब्वियसली आपके बच्चे के बेनिफिट के लिए, या जो भी आपका माइनर चाइल्ड है या जो भी आपका चाइल्ड है उसके बेनिफिट के लिए ही रखना पड़ता है। बिल की थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ऑल्दो बिल को स्टैम्प कराने का जरूरत नहीं होता है। बिल में आपका सिग्नेचर बहुत जरूरी है। आप बिल के एंड में अपना साइन करेंगे। हम जनरली ये भी एडवाइस करते हैं कि जो बिल बना रहा है, जिसको टेस्टेटर कहा जाता है, वो हर पेज पे अपना इनिशियल करे, साइन की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मेरा नाम सचिन भंडावत है तो मैं S.B. हर पेज पे लिख दूं ताकि ऑथेंटिसिटी थोड़ी बेटर हो, और लास्ट पेज पे मैं अपना फुल सिग्नेचर करूंगा। 2 विटनेसेस की जरूरत है। जो आपका बिल आप जब साइन कर रहे हैं आपके बाद साइन करेंगे। लॉ के अंडर रिक्वायरमेंट है कि विटनेस आपको साइन करते हुए देखने चाहिए और आपके साइन करने के बाद वो अपना सिग्नेचर फिक्स करेंगे। कोई भी विटनेस हो सकता है। हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि विटनेस थोड़ा सा यंग पर्सन हो, जो आपसे थोड़ा यंग हो, बिकॉज विटनेस का रोल ये होता है कि कल मान लीजिए अगर विल कॉल्ड इनटू क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई आपका विल चैलेंज करे कि नहीं ये विल अच्छे से एग्जीक्यूटेड नहीं थी, या जो बंदे जिसने एग्जीक्यूट करी थी विल उसका इंटेंशन नहीं था, वो सेन माइंड का नहीं था, तो वो विटनेस आके बोलते हैं नहीं हमने देखा है उसको एग्जीक्यूट करते हुए, एक्स इंडिविजुअल ने विल हमारे सामने एग्जीक्यूट करी है एंड हम टेस्टिफाई करते हैं कि ये सेन माइंड के थे या उनका क्लियर इंटेंशन था। तो जनरली आइडिया इज विटनेस आपके जाने के बाद सर्वाइव करने चाहिए। तो ऐसे रिलायबल लोग जो आपसे यंग हो उनके बारे में बात, उनको आप विटनेस बनाएं। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप, बिल का ऑप्शनल होता है। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहें या नहीं करवाना चाहें वो आपका प्रोरोगेटिव होता है। अनुज के पास भी काफी एक्सपीरियंस है। बहुत सारे क्लाइंट्स अनुज भी रेगुलरली डील करते हैं जो जिनके पास एक क्वेश्चन आते हैं कि वो बिल रजिस्टर करनी चाहिए या नहीं रजिस्टर करनी चाहिए। अनुज अगर आपको कुछ ऐड करना है यहाँ। थैंक यू सचिन। हम लोग देखते हैं कि स्मॉल फैमिलीज में
बहुत कंसर्न रहता है जनरली कि रजिस्ट्रेशन जहाँ लीगल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाता है, लोग एक फीलिंग आने लगती है कि ये इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ेगा, नोटरी कराना पड़ेगा एंड अदर स्टेप्स। जैसे सचिन बता रहा था, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, लीगली तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक प्लेन पेपर में आप पेन से लिख सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस होता है, विटनेसेस चाहिए एंड ऑल दैट, वो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्रेशन, जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि अनलेस किसी को ये फीलिंग हो कि विल बहुत कंटेंशियस होने वाला है, बाद में बहुत डिबेट होने वाला है विल को लेके, या बहुत इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं, तब तो आदमी रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचे। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप रजिस्टर कराएं। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने में प्रॉब्लम ये होता है कि वंस यू रजिस्टर अ विल, आप बार बार जैसे विल चेंज करते हैं, जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि हमने देखा है कि जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, वेल्थ क्रिएट होते जाता है, या कम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जाते हैं, या पुराने कम्प्लेक्सिटीज सॉल्व होते जाते हैं, लोग अपना विल चेंज करते जाते हैं। और जिस डॉक्यूमेंट से हम विल को चेंज करते हैं उसको कोडेसिल बोलते हैं। या तो लोग जस्ट पुराना विल फाड़ देते हैं, नया विल बना देते हैं, या फिर एक कोडेसिल से उसको अमेंड कर देते हैं। सो अगर आप रजिस्टर करा देते हैं तो हर बार आपको रजिस्ट्रार के पास जाके उसको चेंज कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं ऑल्दो ये भी लोगों को कंसर्न रहता है कि वहां कितनी सीक्रेसी रहेगी, विल पब्लिक ना हो जाए, लोगों को एक्सेस ना मिल जाए विल का, इस कंसर्न से भी हम लोग देखते हैं कि लोग अवॉइड करते हैं। नेट टू आंसर द क्वेश्चन, लीगली देयर इज नो ऑब्लिगेशन या रिक्वायरमेंट कि आप विल को रजिस्टर कराएं। थैंक यू। कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस में हमने देखा है कि जो टेस्टेटर विल साइन करता है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट अटेस्ट कर देता है, वो विल के साथ एनेक्स कर देता है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट ये बोलता है कि जब उन्होंने साइन किया था तब उनका क्लियर इंटेंशन था, वो एकदम मेंटली एकदम स्टेबल थे और आराम से उन्होंने वो विल साइन करी थी। एक जस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जो आप अपने विल के साथ दे सकते हैं एक मेडिकल सर्टिफिकेट अटेस्ट करके। एक चीज जो हम और रेकमेंड करते हैं कि आप जो भी अपना ट्रस्टेड एडवाइजर चूज करें, या तो वो गार्डियन हो या तो फिर वो एग्जीक्यूटर हो। आप गार्डियन और एग्जीक्यूटर सेम भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली गार्डियन और एग्जीक्यूटर अलग अलग भी हो सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि आप एक फॉल बैक गार्डियन या एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट करें, जस्ट इन केस। हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा है, अगर मैंने आज अपने विल का एग्जीक्यूटर किसी को अपॉइंट किया, मेरी विल मान लीजिए मेरी डेथ के बाद आज से 10 साल या 15 साल या जब तक भी मैं अलाइव रहता हूं, उसके बाद उस एग्जीक्यूटर को पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरी विल के एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। एट दैट टाइम देयर इज अ चांस कि वो एग्जीक्यूटर ना हो, या वो विलिंग नहीं हो, या वो इंडिया में नहीं हो, या वो कहीं और हो, या वो चाहता ही नहीं हो आपसे आपके एसेट्स से डील करना। तो जनरली रेकमेंडेड है कि एक फॉल बैक एग्जीक्यूटर या एक ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटर या एक ऑल्टरनेट गार्डियन भी आप अपने विल में अपॉइंट करें। उस विल के लैंग्वेज में ही आप ये क्रिएट कर सकते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है वहां पे। बट ऑल्टरनेटिव या फॉल बैक इंडिविजुअल्स या गार्डियंस अपॉइंट करने हमारे हिसाब से रेकमेंडेड है। एक जनरल सवाल आता है कि अगर विल नहीं हो तो क्या होगा, अगर आपने विल नहीं बनाई तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जनरली अगर आप बिल नहीं बनाते तो एटलीस्ट मैं पर्सनल लॉ पे डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए अगर आप हिंदू फेथ के फॉलोअर हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरस्टेट सक्सेशन का, जो हिंदू और मुस्लिम्स, या अगर आपने बिल नहीं बनाई है तो जो एसेट्स आपके हैं वो इंटरस्टेट सक्सेशन के कॉन्सेप्ट से जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट की ज्यादा लीगलीज में नहीं घुसते हुए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आज मैंने अपनी बिल नहीं बनाई है और अगर मैं हिंदू फेथ का हूँ, तो जनरली क्लास 1 एयर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है हिंदुइज्म के अंदर, जो कि मेरे फादर, सिबलिंग्स, बेसिकली मेरे जो क्लोज इमीडिएट क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, उनको वो एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में जाता है। उसके बाद वो क्लास 2 एयर्स को जाता है। उसके बाद जो मेरे कॉग्नेट्स या एग्नेट्स होते हैं उनको जाता है। तो बेसिकली नेट नेट लॉ में प्रोविजन है, अगर आपने विल नहीं बनाई तो ऐसा नहीं है कि आपके एसेट्स आपके लीगल एयर्स में नहीं जाएंगे या आपके एसेट्स बिना लीगल एयर्स में जाके रह जाएंगे। बट इंटरस्टेट सक्सेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके लीगल एयर्स में वो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पर विल बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, कौन लीगल एयर है, क्या उस लीगल एयर का कितना राइट है, क्या कितनी लायबिलिटी है, क्या उस लीगल एयर को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किस प्रपोर्शन में मिलना चाहिए। लॉ जनरली इतना प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, इतना डिटेल्ड नहीं है, इसलिए जरूरी यह है कि आप बिल बनाएं ताकि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मुस्लिम लॉ के अंदर भी ये शेयरर्स एंड रेजिड्यूरी के कॉन्सेप्ट होते हैं।
शेयरर्स 12 तरह के लोग होते हैं, जो हस्बैंड, वाइफ, डॉटर ऑफ अ सन, फादर, मदर एक्सेट्रा, जो मुस्लिम इंडिविजुअल्स के जो एसेट्स होते हैं उनको लेते हैं। शेयरर्स के बाद जो प्रोपोर्शन में एसेट बचता है वो अगेन एक कॉन्सेप्ट होता है रेजिड्यूरीज का, जो ऑब्वियसली थोड़े से डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं उनको मिलता है। तो बेसिकली लॉ प्रोवाइड करता है, बट रेकमेंडेड ये है एंड काफी रेकमेंडेड है कि आप एक विल बनाएं, ताकि आप अपने लाइफ टाइम में डिसाइड कर लें कि आपको किसको कितना, किस प्रपोर्शन में आपके जाने के बाद आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देना है। तो ये हमने बात करी विल के बारे में। अब जैसा कि अनुज ने बात करी कि विल को आप रिवोक, चेंज और कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप अमेंड करना चाहें विल को, तो जैसा अनुज ने बोला, आप एक कोडिसल के थ्रू विल को जब भी आप चाहें अमेंड कर सकते हैं। कोडिसल की भी सेम रिक्वायरमेंट होती है। एक कोडिसल को भी आप 2 विटनेस के से साइन कराएं, आपका सिग्नेचर करें, हर पेज पे इनिशियल करें। अगर आपने अपनी विल रजिस्टर कराई भी है तो रेकमेंडेड है कि आप अपना कोडिसल भी रजिस्टर करवाएं, ताकि रजिस्ट्रार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ अवेलेबल हों। विल कैंसिल भी कर सकते हैं आप एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको फाड़ के या जला के या फेंक दें तो वो विल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। आप एक सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट से स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये विल मैंने XYZ डेट को बनाई थी, बट मैं इस डॉक्यूमेंट से इस विल को कैंसिल कर रहा हूं। आप एक नई विल बना सकते हैं। वो नया विल ये कहेगा कि मैंने ये विल XYZ डेट को बनाई थी, बट वो विल मैं कैंसिल करता हूं और ये नई विल बनाता हूं। तो आप विल को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कैंसिल या रिवोक भी कर सकते हैं। इसलिए रेकमेंडेड है कि आप ये एस्टेट प्लानिंग प्रोसेस आज स्टार्ट कर दें, इमीडिएटली स्टार्ट कर दें, एंड जैसे जैसे आप आगे लाइफ में चलते रहें आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक और चीज जो हमने देखी है क्लाइंट्स के साथ, वो विल बना देते हैं पर उसको ताकि लोगों को पता ना चले थोड़ा सा हाइडिंग में रख देते हैं, प्लेन साइट में नहीं रखते, लोगों को बताते नहीं है उस विल के बारे में। रेकमेंडेड है कि वो विल ऐसी भी जगह ना रखें कि आपके जाने के बाद किसी को वो ना मिले, क्योंकि अगर विल किसी को नहीं मिली तो ये प्रिज्यूम की जाएगी कि आपने विल नहीं बनाई, या आपने विल बना के कैंसिल कर दी, या आपने विल बना के फाड़ दी। आप जो एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करते हैं, एडवाइजेबल है कि आप उसको भी बताएं कि सर आप मेरे एग्जीक्यूटर हो, या मैम आप मेरे एग्जीक्यूटर हो। जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूटर को विल के कंटेंट्स बताए जाए कि मैं अपनी विल में इसको इतना दे रहा हूँ, उसको इतना दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। बट आप जैसे किसी को अगर एग्जीक्यूटर बना रहे हैं तो रेकमेंडेड है कि आप उसको बताएं कि मैंने एक विल बनाई है, मेरे जाने के बाद या अगर आपको कोई अनटूवर्थ इंसिडेंट हो जाए तो ये विल मैं इन जगह रख सकता हूँ, या मैंने अपने बैंक लॉकर में रखी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि वो उसको रिट्रीव कर सके। जैसा कि हमने बात करी, एग्जीक्यूटर जो आपके ट्रस्टेड एडवाइजर्स होते हैं, वन ऑफ द ट्रस्टेड एडवाइजर्स होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं एग्जीक्यूटर्स अपॉइंट करना, बिकॉज आपके जाने के बाद एग्जीक्यूटर्स ही डिसाइड करते हैं कि आपने जो विल में बिक्वेस्ट लिखी हैं वो कैसे आपके लेगेटीज को जाएंगी। मान लीजिए कल अगर मैंने लिखा है कि मेरे पास एक लैंड है जो मेरे सन एंड डॉटर को जाना है, तो एग्जीक्यूटर मेरे जाने के बाद उस लैंड को अगर मैंने लिखा है कि वो बेच के पैसा इक्वली बांटे, तो मेरे एग्जीक्यूटर पे वो ऑब्लिगेशन होता है कि वो लैंड को बेचे एंड पैसा मेरे बेटे और मेरी बेटी में, या मेरे बेटों में या मेरी बेटियों में इक्वली या जिस प्रपोर्शन में मैंने डिसाइड किया है वो बांटे। तो एग्जीक्यूटर का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉ में रिक्वायरमेंट है कि एग्जीक्यूटर मेजर होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। अगेन रेकमेंडेड है कि वो यंगर हो ताकि वो आपको सर्वाइव कर सके। अगर आप एक एग्जीक्यूटर से ज्यादा बनाना चाहते हैं तो विल में प्रोवाइड कीजिए कि कैसे एग्जीक्यूटर्स डिसीजन मेकिंग करेंगे, यूनानिमस से, अगर 3 हो तो मेजॉरिटी से। अगेन एक फॉल बैक या ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटर जैसा कि हमने बात करी है प्लीज रखें, बहुत जरूरी और रेकमेंडेड है एक फॉल बैक एग्जीक्यूटर या ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटर रखना। एग्जीक्यूटर को आप अपनी विल के अंडर बेनिफिट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूटर विटनेस भी हो सकता है। रेकमेंडेड है कि विटनेस 2 इंडिविजुअल लोग हों जो इंडिपेंडेंट हो देन एन एग्जीक्यूटर या एनीबडी जिनको आपने विल में कुछ दिया है। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने अपनी वाइफ को अपना एग्जीक्यूटर बनाया है और मेरे बेटा और बेटी उस विल में हिस्सा है उन प्रॉपर्टी का, तो रेकमेंडेड है कि मैं अपने मान लीजिए किसी फ्रेंड को, या मैं मेरे वाइफ के किसी फ्रेंड को, या मेरे वाइफ के किसी रिलेटिव को, या मेरे किसी रिलेटिव को मेरा विटनेस बनाऊं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। एक और चीज जो एग्जीक्यूटर करता है वो है प्रोबेट ऑब्टेन करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कुछ ज्यूरिसडिक्शंस में, कुछ स्टेट्स में इंडिया के प्रोबेट लेना।
जो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप बॉम्बे में हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं, अगर आप चेन्नई में हैं या तमिलनाडु के किसी हिस्से में हैं जो प्रोबेट टाउन है, तो उन केसेस में विल का प्रोबेट कराना जरूरी होता है। प्रोबेट सिंपली एक प्रोसेस है जो कोर्ट आपका विल में, अगर मैं आपको नॉन लीगल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो कोर्ट एक ठप्पा लगाता है आपकी विल पे और ये सर्टिफाई करता है कि ये विल प्रॉपर है, ये विल एकदम प्रॉपरली एंड वैलिडली एग्जीक्यूटेड है, एंड वो काम एक एग्जीक्यूटर को कराना पड़ता है। इसमें थोड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं क्योंकि जब आपका एग्जीक्यूटर कोर्ट जाएगा तब उसको एक पर्टिकुलर पिटिशन कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। कोर्ट उस पिटिशन को पढ़ेगा, आपके जितने भी लीगल एयर्स हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स या उनसे ये कहलवाएगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन हो, फॉर इंस्टेंस वो बोले कि ये प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए मैंने बिल बनाई है और मेरी बिल का प्रोबेट चल रहा है, तो वो ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी मेरे पास थी नहीं, तो क्योंकि मेरे पास ये प्रॉपर्टी थी ही नहीं, मैं उसको अपनी बिल में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्शन अगर किसी लीगल एयर को हो या किसी को भी हो, तो वो कोर्ट के पास जाके उनको कोर्ट को वो बताते हैं। तो ये पूरा प्रोबेट का प्रोसेस है। थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है अगर ऑब्जेक्शन ज्यादा हो तो, बट मैंडेटरी है। कुछ स्टेट्स में ये करवाना तो जरूरी है, बहुत सारे स्टेट्स में मैंडेटरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में प्रोबेट मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आपकी विल या प्रॉपर्टीज राजस्थान में है तो उसके लिए प्रोबेट मैंडेटरी नहीं है। बट जो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंसी टाउन्स थे उनके लिए अनफॉर्चुनेटली अभी भी प्रोबेट मैंडेटरी है। तो प्रोबेट का जो जिम्मा होता है वो एग्जीक्यूटर के पास होता है। अगर गलती से आपके विल में कोई एग्जीक्यूटर नहीं है तो आपके लीगल एयर्स भी प्रोबेट ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोसेस इंडियन सक्सेशन एक्ट करके कानून है, उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ब्रीफली ये प्रोबेट का प्रोसेस है जिसमें आपके एग्जीक्यूटर को एक काफी अहम हिस्सा प्ले करना होता है। गार्डियंस के बारे में हमने बात करी, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्डियन पे होती है। मल्टीपल गार्डियंस आप अपॉइंट कर सकते हैं, एक गार्डियन विद फॉल बैक गार्डियन आप अपॉइंट कर सकते हैं। आपके माइनर चिल्ड्रन को जो भी एसेट्स बिक्वीत होते हैं या तो विल के अंडर, या अगर आपने ट्रस्ट भी बनाया है तो ट्रस्ट से भी जो माइनर चिल्ड्रन को एसेट्स दिए जाते हैं वो गार्डियन उनकी सेफ कीपिंग के लिए लगते हैं जब तक वो 18 के नहीं हो जाते, या फिर जो भी आपने डेट प्रिस्क्राइब करी है आपके विल के अंदर, तो गार्डियंस अपॉइंट करने भी जरूरी हैं। अगेन जैसा हमने बात करी, एग्जीक्यूटर भी आपके बच्चों के गार्डियन हो सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे क्योंकि हमको गार्डियनशिप इज अ कॉन्सेप्ट जो काफी क्वेश्चंस और जो काफी डाउट्स क्रिएट करता है। अंडर लॉ देयर आर 2-3 काइंड्स ऑफ गार्डियंस, जो एक नेचुरल गार्डियन होता है, एक टेस्टामेंटरी गार्डियन होता है और एक कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन होता है। नेचुरल गार्डियन अमूमन लॉज थोड़े से स्क्यूड हैं, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, बट हिंदू लॉ के अंदर फादर एक नेचुरल गार्डियन होता है, फादर के बाद मदर नेचुरल गार्डियन होती है फॉर अ लेजिटिमेट चाइल्ड। अगर illegitimate child, basically a child which is not born out of wedlock, mother is always the natural guardian for that child, and अगर father alive हैं तो भी mother natural guardian होती है। मुस्लिम लॉ के अंदर फादर को प्रोमिनेंस ज्यादा मिलती है, फादर के बाद उनके एग्जीक्यूटर, उसके बाद उनके ग्रैंडफादर होते हैं। शिया लॉ के अंदर ग्रैंडफादर फादर के एग्जीक्यूटर के ऊपर प्रेफर्ड होते हैं। तो बेसिकली फादर एंड ग्रैंडफादर या उनके विल के एग्जीक्यूटर्स एक्सेट्रा मुस्लिम लॉ के अंदर नेचुरल गार्डियंस होते हैं। क्रिश्चियन लॉ कोई देयर इज नो स्पेसिफिक पर्सनल लॉ दैट गवर्न्स क्रिश्चियंस, दैट गार्डियनशिप ऑफ क्रिश्चियंस अंडर लॉ। तो क्रिश्चियन लॉज के अंदर गार्डियंस इन वॉर्ड एक्ट के अंदर अपॉइंट किए जा सकते हैं। टेस्टामेंटरी गार्डियन शॉर्ट में समझाने के लिए वो लोग होते हैं जिनको आप अपने विल के थ्रू अपॉइंट करते हैं। अगर मैंने अपने विल के थ्रू मेरे किसी दोस्त को अपॉइंट किया है, अगर मेरी वाइफ एट दैट रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम अलाइव है, तो मेरी वाइफ के लाइफ टाइम तक मेरा अपॉइंटमेंट इफेक्ट में नहीं आता। फॉर इंस्टेंस आज अगर मैंने विल बनाई और मैंने लिख दिया कि मेरा भाई मेरे बच्चे का गार्डियन होगा, पर मेरी वाइफ अलाइव है, तो मेरे जाने के बाद मेरा जो ब्रदर है वो ऑटोमेटिकली टेस्टामेंटरी गार्डियन नहीं बनता है। मेरी वाइफ विल बी द गार्डियन ऑफ माई माइनर चिल्ड्रन। इफ माई वाइफ इज नो मोर, ओनली देन मेरा जो भाई है या जिसको भी मैंने टेस्टामेंटरी गार्डियन अपॉइंट किया है, हिंदू लॉ के अंदर वो मेरे बच्चे का गार्डियन बनता है। अगर मेरी वाइफ ने बिना गार्डियन अपॉइंट करे उनकी डेथ हो गई तो मेरा अपॉइंटमेंट रिवाइव हो जाएगा। अगर मेरी वाइफ ने उनकी लाइफ टाइम में एक गार्डियन बना दिया
तो मेरा जो गार्डियन अपॉइंटेड है वो रह जाएगा, वो इफेक्ट में नहीं आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट शॉर्ट में अगर मैं आपको समराइज करूं तो फादर के पास राइट होता है गार्डियन अपॉइंट करने का जब तक मदर अलाइव है। मदर टेस्टामेंट्री गार्डियन या नेचुरल गार्डियन रहेगी अपने बच्चे की, एंड अगर फादर ने मदर के अलावा किसी और को अपॉइंट किया है तो वो इफेक्ट में नहीं आता है। मुस्लिम लॉ के अंदर अगेन फादर को थोड़ी प्रीसिडेंस दी जाती है। फादर के एब्सेंस में पैटर्नल ग्रैंडफादर टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकता है अपने विल के अंदर, तो फादर के पास फर्स्ट राइट है, और अगर फादर अपॉइंट नहीं करे या करना भूल जाए तो पैटर्नल ग्रैंडफादर टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकता है। क्रिश्चियन लॉ अगेन कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो टेस्टामेंट्री गार्डियंस को करता है, बट हमने अमूमन देखा है कि क्रिश्चियंस भी अपनी विल के अंडर या विल के थ्रू किसी को भी टेस्टामेंट्री गार्डियंस अपॉइंट कर देते हैं। एडवाइजेबल है फॉर व्हाट इट्स वर्थ, किसी भी फेथ की अगर आप हैं, किसी भी फेथ को आप फॉलो करते हैं, एडवाइजेबल है कि अगर आप फादर हैं तो अपनी वाइफ को अपॉइंट करें, या अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड को अपॉइंट करें जनरली एज गार्डियंस। एंड एक फॉल बैक गार्डियन जरूर रखें कि अगर फादर एंड मदर की किसी भी अनटूवर्थ इंसिडेंट की वजह से साथ में डेथ हो जाए या वो एक दूसरे को ज्यादा लंबे टाइम के लिए सर्वाइव ना कर पाए तो कोई फॉल बैक गार्डियन आप अपॉइंट करें। कोर्ट्स में भी गार्डियन आप अपॉइंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल के पास कोर्ट के पास भी पावर होती है किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट करने की। अगर पेरेंट्स अलाइव हैं और फिट हैं तो जनरली कोर्ट गार्डियन अपॉइंट नहीं करता है। और कोर्ट के जो गार्डियंस अपॉइंटेड होते हैं उनके पास ऐसा नहीं है कि कल अगर किसी को कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया तो वो आपके माइनर की प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है। रेस्ट्रिक्शंस हैं अंडर लॉ। सिर्फ नेसेसिटी अगर हो तो ही माइनर का गार्डियन प्रॉपर्टी बेच सकता है या प्रॉपर्टी के साथ कुछ और कर सकता है। जनरली कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियंस भी माइनर के इंटरेस्ट में ही काम करते हैं और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता है उनके ऊपर माइनर के इंटरेस्ट में काम करने का। एक और रेलेवेंट एस्पेक्ट है गार्डियंस अपॉइंट करने का कि गार्डियंस नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर भी अपॉइंट हो सकते हैं। पेरेंट्स और एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिलेटिव लोकल लेवल कमिटी जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में होती है उसके पास जाके एक गार्डियन अपॉइंट करवा सकते हैं। अगेन रिकमेंडेड ये है कि आप अपने विल के थ्रू ही गार्डियन अपॉइंट करें rather than अप्रोचिंग एक कमिटी को एक अलग एप्लीकेशन दे अपॉइंट करवाने के लिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन भी अगर वो चाहे तो स्पेशल नीड्स चाइल्ड का या एनी चाइल्ड हु सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म या किसी भी अदर तरह की डिसेबिलिटी वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी एक एप्लीकेशन दे सकता है गार्डियन अपॉइंट करने के लिए। बट हैविंग सेड दैट हम अगेन रेकमेंड करते हैं कि आप अपने लाइफ टाइम में ही गार्डियन अपॉइंट करें। एंड अगर गार्डियन नेशनल ट्रस्ट एक्ट के थ्रू या किसी भी और गार्डियंस इन वॉर्ड एक्ट के थ्रू भी अपॉइंट हो रहा है तो इंश्योर करें कि अगर आप ये एप्लीकेशन अपने लाइफ टाइम में कर रहे हैं तो आपका विल में जो गार्डियन अपॉइंटेड है एंड जो आप कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं या नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर अप्रोच कर रहे हैं उनमें कोई डिस्कनेक्ट नहीं हो। तो दैट इज समथिंग विच इज रेलिवेंट एंड गार्डियंस के एस्पेक्ट में वो कंसिडर करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे एक डॉक्यूमेंट के बारे में जिसको कॉमनली लेटर ऑफ इंटेंट के थ्रू जाना जाता है। एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट पर रेकमेंडेड डॉक्यूमेंट है स्पेशली इन फॉर पेरेंट्स हु हैव चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बेसिकली लेटर ऑफ इंटेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने बच्चे की छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन को डिटेल आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि लेटर ऑफ इंटेंट की जरूरत क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट की वजह से आप न रहें तो आपके जो ट्रस्टेड एडवाइजर हैं या आपके जो गार्डियन हैं उनको आपके स्पेशल नीड्स चाइल्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। तो उस लेटर ऑफ इंटेंट में अगेन ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है जो आप जिस तरह से आप लिखना चाहें। बेसिकली आज आप एक पेपर लेके स्टार्ट हो सकते हैं कि आपके चिल्ड्रन के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी एबिलिटीज क्या है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही हुई है, उनको किस प्रकार का एलिमेंट है, उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्या हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स किस तरह की हैं, उनको उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या वो जिस स्कूल में जा रहे हैं उनको वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनके कल्चर ट्रेडिशंस क्या हैं, आपके लिए ऐसा क्या ज़रूरी है कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या होने चाहिए, उनके गोल्स क्या होने चाहिए। Basically, all what you want for your child, you can put in this letter of intent. उनकी आज से लेकर एंड तक
जो भी हिस्ट्री है, जो भी उनके गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो आप सब उस लेटर ऑफ इंटेंट में लिख सकते हैं. इट कैन बी एज डिटेल्ड अ डॉक्यूमेंट एज यू वांट टू. एक चीज हम रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप लेटर ऑफ इंटेंट ड्राफ्ट करें, फॉर इंस्टेंस अगर आज मैं अपने स्पेशल नीड्स चाइल्ड के लिए लेटर ऑफ इंटेंट ड्राफ्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन उस लेटर ऑफ इंटेंट में लिखी है, तो सारे बैकअप डॉक्यूमेंट्स भी आप एक साथ उस लेटर ऑफ इंटेंट के साथ रखें. फॉर इंस्टेंस आज से लेकर नेक्स्ट 5 साल या 10 साल या पहले के भी जो भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो भी उसके रिसेंट रिपोर्ट्स हैं, जो भी डॉक्टर्स के एग्जामिनेशन है एक्सेट्रा, वो सब आप उसके साथ रखें. कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स, कोई भी आईडी प्रूफ्स एक्सेट्रा, ओरिजिनल या फोटोकॉपी, आप एक साथ एक फाइल बना के रखें. उस फाइल को रेगुलरली अपडेट करें, क्योंकि अमूमन देखने में ये आता है कि आपको लगता है कि बहुत छोटी सी चीज है, हम कभी भी कर सकते हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं है. बट हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जिसमें लोग ये करना ही भूल जाते हैं, और फॉर सम ऑफ द अदर रीजन, मान लीजिए फॉर कुछ हो जाए, तो उनके जाने के बाद न ये एसेट्स उनके पास रहते हैं, न लाइबिलिटीज उनके पास रहती है, और न उनके आने वालों को पता होता है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कहाँ हैं. We are people who have children with special needs. We are people who are dealing with children who have special needs. उनके लिए ये लेटर ऑफ इंटेंट स्पेशली इन लाइट ऑफ अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो दिस नॉन लीगल डॉक्यूमेंट may not be necessary under law, but very advisable to have it in place. अब हम लोगों ने विल एंड लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में बात कर ली है. नेक्स्ट हम एक थोड़ी सी न्यूमैन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो ट्रस्ट है. ट्रस्ट बेसिकली विल से थोड़ा डिफरेंट होता है. ट्रस्ट आप सेटल कर सकते हैं आपकी लाइफ टाइम में. विल जनरली टेक इनटू इफेक्ट आफ्टर योर पासिंग, आफ्टर योर डिवाइस. ट्रस्ट के कुछ नेसेसरी एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस ये है कि आप ट्रस्ट डीड में जिस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें, जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपके बेनिफिशरीज में हो, वो हो सकता है. आप खुद एज पेरेंट्स ट्रस्टी बन सकते हैं, एंड आप ऑब्वियसली आपके जाने के बाद फॉल बैक ट्रस्टीज अपॉइंट कर सकते हैं. तो आपके पास ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम अगर आपने कुछ ट्रस्ट में एसेट्स डाल भी दिए हैं, तो आप उन एसेट्स पे कंट्रोल रिटेन कर सकते हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है चिल्ड्रन स्पेशली विदाउट चिल्ड्रन हु हैव स्पेशल नीड्स के लिए. स्टेबिलिटी इस तरह होती है कि अगर मान लीजिए आज मेरे पास 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं, अगर मैं आज मेरे स्पेशल नीड्स चाइल्ड को गिफ्ट भी कर दूं वो एसेट, तो क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनके लिए वो गिफ्ट कोई पॉइंट नहीं है. अगर मैं विल के अंडर भी प्रोवाइड करूं कि मेरे जाने के बाद मेरे स्पेशल नीड्स चाइल्ड को वो 1 लाख रुपए के एसेट्स मिल जाए, तो वो क्योंकि उसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उनमें वो कैपेसिटी नहीं होगी डिसीजन लेने की, तो आउटराइट डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है. तो ट्रस्ट के थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं कि उस एसेट से कल कोई इनकम जनरेट हो रही हो, रेगुलर इनकम अगर कोई आ रही हो बाय वे ऑफ रेंट, अगर शेयर्स हैं तो डिविडेंड, वो इनकम आपके स्पेशल नीड्स चाइल्ड को रेगुलरली मिल सके. इसलिए ट्रस्ट इज समथिंग विच इज रेकमेंडेड. एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो ट्रस्ट प्रोवाइड करता है, ट्रस्ट में अगर आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो प्रोबेट की कोई जरूरत नहीं होती है, कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं होती है. जो ट्रस्ट डीड आप ड्राफ्ट करेंगे वो इनफ होती है ट्रस्ट को काम आने में. सो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि ट्रस्ट कैसे सेटल हो सकता है. सिंपल 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की कैपेसिटीज होती हैं जो ट्रस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है सेटलर. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो आज मैं सेटलर हूँ, मुझे एक ट्रस्ट सेटल करना है तो मैं सेटलर हो गया. कोई भी बंदा सेटलर हो सकता है. ओनली थिंग इज वो मेजर होना चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कंपिटेंट होना चाहिए. बेसिकली समबडी हु हैज अ सेम माइंड एंड एन इंटेंशन कैन बी अ सेटलर. जो ट्रस्टी होता है वो भी एक सेटलर हो सकता है. फॉर इंस्टेंस अगर आज मैं मेरे स्पेशल नीड्स चाइल्ड के लिए ट्रस्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं भी सेटलर हो सकता हूं और मैं अपने आप को ट्रस्टी भी अपॉइंट कर सकता हूं. आई विल वर्क इनटू सेपरेट कैपेसिटी. ट्रस्टी बेसिकली लीगल ओनर होता है प्रॉपर्टी का. अगेन कोई भी बंदा ट्रस्टी हो सकता है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए. एज लॉन्ग एज ये 2 रिक्वायरमेंट हो, मैं ट्रस्टी बन सकता हूं. एज अ ट्रस्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे राइट्स और मेरे ड्यूटीज सब कुछ उस ट्रस्ट डीड के थ्रू आते हैं. कल अगर आप पेरेंट हैं, आपने एक ट्रस्ट डीड बनाई
उस ट्रस्ट डीड में आप अगर खुद सेटलर खुद ट्रस्टी हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके जाने के बाद जो ट्रस्टी होते हैं या आपके लाइफ टाइम में भी कोई और ट्रस्टी आप अपॉइंट करना चाहें तो आप उस ट्रस्ट डीड में क्लियरली प्रोवाइड कर सकते हैं कि उस ट्रस्टी के पास क्या पावर होनी चाहिए, उस ट्रस्टी के क्या राइट्स होने चाहिए, उस ट्रस्टी की क्या लायबिलिटी होनी चाहिए। Trustees are bound to act as a fiduciary to your beneficiary. ट्रस्टी के ऊपर ही ऑब्लिगेशन होता है अंडर लॉ कि वो कोई भी एक्शन लें बेनिफिशियरीज के बेनिफिट के लिए लें। बेनिफिशियरी कौन होंगे? कोई भी जना जिसके लिए आप ये ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। अमूमन फैमिली ट्रस्ट होते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेटल करते हैं। आप अपने सारे बच्चों के लिए एक ही ट्रस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब के लिए मल्टीपल बेनिफिशियरीज आप ट्रस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप हर बच्चे के लिए अलग अलग ट्रस्ट भी बना सकते हैं। ट्रस्ट ए फॉर चाइल्ड 1, ट्रस्ट बी फॉर चाइल्ड 2 एंड ट्रस्ट सी फॉर चाइल्ड 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज में। माइनर्स भी बेनिफिशियरी बन सकते हैं एंड कोई प्रोहिबिशन नहीं है लॉ में कि माइनर्स बेनिफिशियरी नहीं बन सकते। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, अगर माइनर बेनिफिशियरी हैं तो ट्रस्टी जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एंड मेरा मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन से अगर ट्रस्टी के पास मान लीजिए एक एसेट है जिसमें से रेंट आ रही है या फिर शेयर्स है जिसपे डिविडेंड आ रहा है या फिर कैश है, तो आप अपनी ट्रस्ट डीड में प्रोवाइड करेंगे कि ट्रस्टी को हर साल मेरे बच्चे को एक्स अमाउंट ऑफ मनी उसकी डेली अपकीप के लिए, उसके मेडिकल बिल्स के लिए देना होगा। ये जो ऑब्लिगेशन है ट्रस्टी का, हर साल या 6 महीने में एक बार या हर महीने जो भी आप ट्रस्ट डीड में प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एंड ट्रस्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द ट्रस्ट डीड। तो ये थे 3 पार्टीज। स्टेप्स टू मेक अ ट्रस्ट हमने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है इन द लास्ट 2 स्लाइड्स। मैं एक ट्रस्ट कैसे सेटल कर सकता हूं? मैं आज एक ट्रस्ट डीड बनाऊंगा। ट्रस्ट डीड पे मैं जो भी मेरे ट्रस्टी होंगे उनको आइडेंटिफाई करूंगा। उस ट्रस्ट डीड में मैं उनके पावर्स, राइट्स, लायबिलिटीज, कौन बेनिफिशियरी होगा, उस बेनिफिशियरी को कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, वो ट्रस्ट कब तक मैं रखना चाहूंगा, कब किस टाइम तक मैं रखना चाहूंगा, वो सब मैं उसमें लिखूंगा। मैं अपना सिग्नेचर करूंगा। ट्रस्टीज जो होंगे या अगर एक ही ट्रस्टी आप बनाना चाहें तो ट्रस्टीज भी अपना सिग्नेचर करेंगे। अगर मैं ही ट्रस्ट का सेटलर हूं और ट्रस्टी भी हूं तो मैं सेटलर की जगह भी साइन करूंगा, मैं ट्रस्टी की जगह भी साइन करूंगा। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ट्रस्टी भी बनना चाहता हूं और मैं सेटलर भी बनना चाहता हूं, मैं अपने बेनिफिशियरीज को अपॉइंट करूंगा। एंड अगर बेनिफिशियरीज माइनर हैं तो मैं उन बेनिफिशियरीज के लिए गार्डियन भी अपने बिल के थ्रू या तो अपॉइंटेड है या ट्रस्ट के थ्रू अपॉइंटेड है, मैं गार्डियंस भी अपॉइंट कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ी लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ट्रस्ट डीड सेटल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है। तो आप लॉयर को कंसल्ट करें जो एक डिटेल ट्रस्ट डीड बनाएगा एंड आप अपने एसेट्स जो भी आप सेटल करना चाहते हैं अपने लाइफ टाइम में। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आज आपने ट्रस्ट बना दिया तो जो आज आपने उस ट्रस्ट में एसेट डाल दिए आपकी लाइफ टाइम तक वही एसेट होंगे उस ट्रस्ट में। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके कोई भी एसेट्स हों आप उस ट्रस्ट में डाल सकते हैं। क्या आप उन एसेट्स को ट्रस्ट से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, वो मैं थोड़ा आगे आके आपको, ट्रस्ट के टाइप पे वो डिपेंड करता है, मैं तब आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो मैं बात कर रहा था कौन से टाइप के ट्रस्ट होते हैं, इंडिया में 2 तरह के ट्रस्ट होते हैं, एक पब्लिक ट्रस्ट होता है और एक प्राइवेट ट्रस्ट होता है। पब्लिक ट्रस्ट टिपिकली चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो आप देखते हैं जो एनजीओज होते हैं जनरली, वो प्राइवेट ट्रस्ट नहीं होते हैं, वो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं। हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, हम बात करेंगे प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में ही जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल सेटल कर सकता है उनकी लाइफ टाइम में। 2 तरह के प्राइवेट ट्रस्ट भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंट्रोल अ सेटलर वांट्स टू एक्सरसाइज। अब इसका क्या मतलब है, आज मान लीजिए मैंने एक ट्रस्ट सेटल करने की मेरी ट्रस्ट सेटल करने की इच्छा है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की एसेट्स हैं, एसेट्स कैन बी एनीथिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कैश हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी एसेट्स हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ट्रस्ट बनाऊं बट मेरे लाइफ टाइम में मैं कुछ कंट्रोल रिटेन करूं उन एसेट्स पे, तो मैं एक रेवोकेबल ट्रस्ट सेटल करूंगा। उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज ये है कि मैं अपने लाइफ टाइम में उन एसेट्स पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता हूं इन द सेंस कि मैं उनको वापस निकाल सकता हूं। इररेवोकेबल ट्रस्ट में मेरे पास वो कंट्रोल नहीं रहता। एक बार मैंने जो एसेट्स ट्रस्ट में डाल दिए वो रिवोक नहीं हो सकते, रिवोक इन द सेंस वो वापस मेरे पास नहीं जा सकते एज अ सेटलर। अगर मैं ट्रस्टी हूं तो भी
एक रेवोकेबल ट्रस्ट में मुझे उनको एक सेपरेट कैपेसिटी में रखना होगा अंडर लॉ। मैं उनको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता, मुझे बेनिफिशियरीज के लिए ही, जो मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, उनके लिए ही यूज करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो एसेट्स मेरे ही थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ही ट्रस्टी हूं, बट अगर मैंने एक इररिवोकेबल ट्रस्ट सेटल किया है तो कल मैं अपने बिल पे करने के लिए उस कैश को यूज नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, बिल के लिए या किसी भी चीज के लिए मैं उसको यूज नहीं कर सकता। पर्सनल एक्सपेंस के लिए मुझे अपने बच्चों के या जो मेरे बेनिफिशरीज हैं उनके लिए ही यूज करना पड़ता है। ये एक डिसएडवांटेज है। ये एक डिसएडवांटेज है, सॉरी ये एक एडवांटेज है एक रेवोकेबल ट्रस्ट का, विजर्वी डिसएडवांटेज है एक इररेवोकेबल ट्रस्ट का। रेवोकेबल ट्रस्ट का टैक्स एस्पेक्ट से थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि टैक्सेशन फिर आपको, अगर आपने रेवोकेबल ट्रस्ट सेटल किया है तो वो टैक्स पूरा आपको अपने एसेट्स, अपने एस्टेट पे भरना पड़ेगा, आपकी इनकम के थ्रू आप उस पे भरेंगे। ट्रस्ट उस पे कोई टैक्स नहीं देगा, आपको उस पे टैक्स देना होगा। वो एक टैक्स पर्सपेक्टिव से रेवोकेबल विजर्वी इररेवोकेबल में डिस्टिंक्शन आ जाता है। हम टैक्स के बारे में सेपरेटली बात भी करेंगे अगले से अगली स्लाइड में। दूसरी तरह के ट्रस्ट होते हैं डिटरमिनेट और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। मैं आपको ये डिस्टिंक्शन इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जब आपके पास ट्रस्ट सेटल करने का जब क्वेश्चन आता है तब बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल आता है कि ट्रस्ट सेटल कैसे करना चाहिए। एक डिटरमिनेट ट्रस्ट वो ट्रस्ट होता है जिसके अंडर ट्रस्टी को आप आज की डेट में बता देंगे कि उनको किस प्रपोर्शन में आपके बेनिफिशरीज को हिस्सा देना है। अगेन मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक ट्रस्ट सेटल किया, लाख रुपए का प्रॉपर्टी मैंने उसके अंदर डाल दिया। मान लीजिए फॉर इंस्टेंस मैंने लाख रुपए का कैश उसके अंदर डाला और एक प्रॉपर्टी डाली जो रेंट जनरेट करती है। मैं ट्रस्टी को एक डिटरमिनेट ट्रस्ट अगर मैं बना रहा हूं तो मैं ट्रस्टी को आज की डेट ही ये इंस्ट्रक्शन दूंगा, ट्रस्ट डीड में जो प्रोवाइडेड होगा कि आप, मेरे ये दो बेनिफिशियरी हैं, मान ले मेरे दो बच्चे हैं, आप 25% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट, जो मान लीजिए आज मुझे 50 रुपए की रेंट मिल रही है पर ईयर या पर मंथ, एंड मेरे पास जो ट्रस्ट एसेट हैं वो एसेट्स आप इस प्रपोर्शन में मेरे बेनिफिशरीज में बांटे। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में ट्रस्टी के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो कैसे एसेट्स बांटना चाहते हैं, आपके बेनिफिशरीज में कैसे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपके बेनिफिशरीज में। तो ये डिटरमिनेट एंड डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में फर्क होता है। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट डिस्क्रिशन रेस्ट विद द ट्रस्टीज। डिटरमिनेट ट्रस्ट आप आज की डेट में डिसाइड कर देंगे कि ट्रस्टी को डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द ट्रस्ट कैसे करना चाहिए। तो वो आपका कॉल है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं आपके ट्रस्टी पे, आप कितना एडवांटेज लेना चाहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का, वो एब्सोल्युटली आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है, एंड आप उस हिसाब से ट्रस्ट का टाइप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विल्स एंड ट्रस्ट के कंपैरेटिव एनालिसिस की। सिंपली पुट, विल में आपका कंट्रोल नहीं होगा एसेट्स पे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपने आज विल बनाई है तो आपकी डेथ के बाद ही वो विल इफेक्ट में आएगी। आज की डेट में आपका ऑब्वियसली आप फॉर एग्जीक्यूशन आप किसी और पे रिलाई कर रहे हैं कि वो बंदा आपके प्रॉपर्टी को जिस हिसाब से आपने लिखा है वैसे एग्जीक्यूट करे। ट्रस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने आज एक ट्रस्ट बनाया और आपने एसेट्स उस ट्रस्ट में डाल दिए और किसी और ट्रस्टी को अपॉइंट किया, तो आज की डेट में इवन दो ये प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया है, ऑब्वियसली आप कंट्रोल रिटेन कर सकते हैं उन एसेट्स पे, आप अपनी लाइफ टाइम में ही ट्रस्टी बन सकते हैं, एंड आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बेनिफिशरीज को कैसे वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ट्रस्ट में आप क्लियरली प्रोवाइड कर सकते हैं कि ट्रस्टी को आपके लाइफ टाइम में या इवन आफ्टर योर लाइफ टाइम कैसे एक्शंस लेने चाहिए, क्या पावर्स होंगे उनके, क्या वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं, किस प्रपोर्शन में उनको डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, किस प्रपोर्शन में उनको आपके एसेट्स को आपके बेनिफिशरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वो सारा कुछ आप ट्रस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं। एसेट प्रोटेक्शन भी ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करता है rather than a will। एसेट प्रोटेक्शन इन द सेंस, कल मान लीजिए आज मैंने एक लोन लिया है एंड आज की डेट में मैंने एक ट्रस्ट भी सेटल कर दिया है, तो एसेट प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से फॉर व्हाट इट्स वर्थ जो मैंने प्रॉपर्टी ट्रस्ट में सेटल करी है वो मेरे एस्टेट का पार्ट नहीं है, वो मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्ड नहीं करता हूं। तो कल को अगर मान लीजिए मैंने कोई बैंक लोन में डिफॉल्ट भी कर दिया, तो मेरे जो क्रेडिटर्स हैं, जो प्रॉपर्टी मैंने ट्रस्ट में डाली है,
टिपिकली उस प्रॉपर्टी के पीछे नहीं आ सकते, उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, बट मोटा मोटी द प्रिंसिपल दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम इज कि ट्रस्ट में प्रॉपर्टी सेटल होने के बाद जो सेटलर है उसका एसेट वो नहीं रहता है, सेटलर उस एसेट को ट्रांसफर कर देता है एंड वो एसेट उसके एस्टेट का पार्ट नहीं रहता है। तो एसेट प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से भी ट्रस्ट थोड़े एडवांटेजेस देता है। इंप्लीमेंटेशन का ईज, दोनों में अपने अपने एडवांटेजेस हैं। विल को आप घर बैठे बना सकते हैं, कोई लीगल लॉयर की या किसी लीगल एक्सपर्टीज की खास आपको जरूरत नहीं है, बट विल को एग्जीक्यूट करने के लिए इन सम स्टेट्स प्रोबेट प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। ट्रस्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सेटल करना। आपने रियलाइज किया होगा ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट डीड होती है, टाइप ऑफ ट्रस्ट चूज करना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे वो सारा ट्रस्ट में प्रोवाइड करना, उसके लिए आपको लीगल असिस्टेंस की जरूरत होती है। पर जैसा हमने डिस्कस किया ट्रस्ट के लिए प्रोबेट नहीं चाहिए होती है, तो प्रोबेट प्रोसेस जिसमें अमूमन लोगों को साल 2 साल 5 साल ज्यादा भी लग सकता है, ट्रस्ट में वो एडवांटेज है। ट्रस्ट में जैसे इवन आफ्टर योर लाइफ टाइम अगले ही दिन मैं जो मेरे बेनिफिशियरी हैं उनको ट्रस्टीज बेनिफिट देना स्टार्ट कर सकते हैं। विल में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रोवाइड करना। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि अगर आप प्रोबेट के थ्रू जा रहे हैं तो विल पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर आप रजिस्ट्रार के पास उस विल को रख रहे हैं तो सॉर्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट तब भी बन जाता है। ऑब्वियसली एक्सेसिबल टू ऑल नहीं होता, बट फिर भी अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो थोड़ी पब्लिक डॉक्यूमेंट का फ्लेवर उस विल को आ जाता है। ट्रस्ट डीड को आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, पर ट्रस्ट डीड को आपको थोड़ा स्टैम्प करवाना पड़ेगा। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेटल करना चाहते हैं तो रजिस्टर भी करवाना पड़ता है अगर आपको ट्रस्ट डीड सेटल कर रहे हैं तो, बट आप उसको एज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। कोई प्रोबेट प्रोसेस नहीं है तो कोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनता है ट्रस्ट डॉक्यूमेंट। पर्सनल लॉज जैसे हमने बात करी, विल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अंडर पर्सनल लॉ। स्पेसिफिकली जो मुस्लिम फेथ के फॉलोअर्स हैं उनके लिए थोड़े रेस्ट्रिक्शन होते हैं। जो मुस्लिम फेथ के फॉलोअर्स हैं उनमें आप ओनली 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी आप विल के थ्रू सेटल कर सकते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी जो मैंने इंटरस्टेट सक्सेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी उसके थ्रू जाते हैं। जो हिंदू फेथ के फॉलोअर्स हैं वो अपनी सारी प्रॉपर्टी विल के थ्रू दे सकते हैं। मुस्लिम्स में ये रेस्ट्रिक्शन है कि ओनली 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसे देना चाहते हैं, बाकी सारा इंटरस्टेट सक्सेशन के जाता है। ट्रस्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप किसी भी फेथ के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट लॉ जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, वो सेक्युलर लेजिस्लेशन है, तो ट्रस्ट में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लॉ। थोड़ी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा क्विकली। मैं इनको आई विल गो थ्रू देम। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हमने काफी बात कर ली है इस बारे में। विल कैन बी अ सिंपल हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। आप किसी भी लैंग्वेज में, आपकी मदर टंग में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आप घर बैठे आराम से लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटी जैसा हमने बात करी, आप साइन कीजिए, 2 विटनेसेस का सिग्नेचर कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आपका विल एकदम प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट बन सकता है। ट्रस्ट में थोड़े कॉम्प्लिकेशन है। एक ट्रस्ट डीड जो डिटेल में सबको सेट आउट करती है वो रिक्वायरमेंट है। जनरली आपको विल के लिए लॉयर की जरूरत नहीं है, पर ट्रस्ट के लिए इट इज नेसेसरी ऑल्सो एंड इट इज रिकमेंडेड ऑल्सो कि आप लॉयर का यूज लें। विल में इवन दो नेसेसरी नहीं है लॉयर का रोल, बट एडवाइजेबल है इन आर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि आप एक लॉयर को एटलीस्ट रिव्यू प्रोसेस के लिए यूज करें। आप विल बना दें, अपने हाथ से साइन करवा दें, विटनेसेस का साइन करवा लें, बट एक बार आप एक लॉयर के थ्रू या आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप जानते हैं, जिसने लॉ पढ़ी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट एक बार वो अगर देख ले कि आपने बिल अंडर लॉ प्रॉपरली साइन और एग्जीक्यूट करी है तो वो रिकमेंडेड है। कॉस्ट वाइज ऑब्वियसली क्योंकि आप बिल आराम से खुद बना सकते हैं, कोई लीगल कॉस्ट नहीं आएगी अगर आप खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो रिलेटिवली अगेन बिल की कॉस्टिंग थोड़ी कम पड़ती है। टियर 1 लॉ फर्म जैसे कि मान लीजिए अगर आप खैतान के पास आते हैं एक बिल ड्राफ्ट करवाने के लिए, तो फॉर नॉन प्रो बोनो बेसिस वी जनरली चार्ज समवेयर अराउंड 60,000 से अराउंड 1 लाख फॉर अ बिल।
ट्रस्ट के लिए थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का ट्रस्ट आप सेटल करना चाहते हैं, समवेयर अराउंड 2 to 5 लाख रुपीज चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली सारे इंडिकेटिव फिगर्स हैं लॉ फर्म्स पे और टाइप ऑफ लॉ फर्म्स पे, टाइप ऑफ बिल, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट पे ये फिगर्स वेरी करते हैं, बट वी थॉट हम आपको एक बॉल पार्क दे सकते हैं जो टिपिकली लोग चार्ज करते हैं एक बिल को या एक ट्रस्ट को सेटल करने के लिए। लीगल फीस ऑब्वियसली ट्रस्ट में हायर है, बट बिल में भी आप रिव्यू करना चाहें, किसी को देना चाहें तो बुटीक लॉ फर्म्स फिर भी थोड़ी रीजनेबल होती हैं बिल को बनाने के लिए। टैक्सेस एंड ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ये दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू ट्रस्ट। ट्रस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के थ्रू टैक्स होता है। व्हाट आई मीन टू से फ्रॉम दैट इज कि ट्रस्ट या तो ट्रस्टी के लेवल पे भी टैक्स होता है या बेनिफिशियरी के लेवल पे भी टैक्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट इट टू बी टैक्स्ड। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट जिस प्रकार का आपने ट्रस्ट बनाया है उस पर डिपेंड करता है। अगर रिवोकेबल ट्रस्ट आपने बनाया है तो ट्रस्ट पे टैक्सेशन सेटलर को देना पड़ता है। जैसे कि हमने बात करी, मान लीजिए ट्रस्ट है, सेटलर के पास पूरा राइट है जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसको लेने का, तो सेटलर टैक्स देगा। अगर इररेवोकेबल ट्रस्ट है तो सारा सेटलर ने प्रॉपर्टी यहां दे दिया है, सेटलर के पास कोई राइट नहीं है, तो इस लेवल पे ट्रस्ट टैक्स होगा। यानी जो ट्रस्टी हैं वो एक इररेवोकेबल ट्रस्ट पे टैक्स देंगे। और डिटरमिनेट ट्रस्ट है तो डेफिनेटली सॉरी डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो डेफिनेटली ट्रस्टी के लेवल पे ही टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में कोई फिक्स्ड बेनिफिट नहीं है बेनिफिशियरी का। फॉर इंस्टेंस डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में ट्रस्टी के पास की पूरी राइट होती है कि वो किस डिस्क्रिशन में बेनिफिशियरी को बेनिफिट दे। कल वो 10 रुपए भी बेनिफिशियरी को दे सकते हैं, कल 50 रुपए भी बेनिफिशियरी को दे सकते हैं, वो ट्रस्टी के पास डिस्क्रिशन होता है। तो टैक्स भी एट अ ट्रस्टी लेवल लगता है। डिटरमिनेट ट्रस्ट में क्योंकि बेनिफिशियरी के का जो शेयर होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। मान लीजिए अगर लाख रुपए ट्रस्ट में सेटल्ड हैं, आपने डिसाइड किया कि आपके जो बेनिफिशियरीज हैं उनको इक्वल शेयर में ट्रस्टीज डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, तो ट्रस्टी जो बेनिफिशियरी का जो स्टेक है उस ट्रस्ट में वो प्री डिसाइडेड है, तो बेनिफिशियरी के लेवल पे भी वो ट्रस्ट टैक्स हो सकता है। बेसिकली आपको ऑब्वियसली इसमें प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है, बट मोटा मोटी समझाने के लिए ट्रस्ट के टाइप पे ट्रस्ट का टैक्सेशन डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्रस्ट यू चूज। लाइफ टाइम ऑफ द ट्रस्ट में कोई डबल टैक्सेशन नहीं होता। अगर ट्रस्टी ने टैक्स दे दिया तो बेनिफिशियरी को वापस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अगर बेनिफिशियरी ने टैक्स दे दिया है तो ट्रस्ट लेवल पे वापस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टिपिकली हमने देखा है एट द लेवल ऑफ ट्रस्टी एमएमआर जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है उस पे टैक्स होता है। अगेन मेरे नॉलेज में आई थिंक एमएमआर आज की डेट में अराउंड 30% है, तो प्लस सेस एंड सरचार्ज, तो उस रेट पे ट्रस्ट टैक्स होगा। एस्टिंग्विशमेंट ऑफ ट्रस्ट पे कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगता है। डीम्ड गिफ्ट, अगर आपने अपने इनकम टैक्स में एक प्रोविजन होता है डीम्ड गिफ्ट का, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है, बट टिपिकली एस्टिंग्विशमेंट ऑफ ट्रस्ट पे भी ज्यादा टैक्स इंसिडेंट्स नहीं होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो जनरली ट्रस्ट इज स्टैम्प्ड एट द इनिशियल सेटलमेंट अमाउंट। इनिशियल सेटलमेंट अमाउंट क्या होता है? आज की डेट में अगर आज मैंने 100 रुपए पे ट्रस्ट सेटल किया तो 100 रुपए पे मुझे टैक्स देना पड़ता है। ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मैं उसको आराम से सेटल कर सकता हूँ ट्रस्ट के अंदर, मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि इनिशियल सेटलमेंट अमाउंट पे मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर इंस्टेंस अगर मैं लैंड सेटल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो मैं एक डीड के थ्रू सेटल करूंगा, एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड के थ्रू सेटल करूंगा, तो उसमें थोड़े स्टैम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशंस डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेट में ये सेटल हो रहा है आ सकते हैं। बेसिकली ट्रस्ट पे थोड़े से टैक्सेस एंड स्टैम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशंस हैं, विल में वो नहीं होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली विल एक डॉक्यूमेंट है, आपके डेथ के बाद वो इनहेरिटेंस लॉज के थ्रू आपके जो सक्सेसर्स होते हैं उस पर डिवॉल्व करता है। अनुज, इफ देयर इज एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहें, नहीं तो फिर मैं केस स्टडीज डिस्कस कर लूं। सचिन, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू। सब फ्लोट, यू नो, यू आर गोइंग ऑल राइट। अभी तो कुछ ऐड नहीं करना है, बाद में वी विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस, जैसे आई सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर ऑन प्रोबेट एंड फ्यू अदर्स, तब हम लोग वो साथ में डिस्कस कर लेंगे, बट गो अहेड विद द केस स्टडीज। अंडरस्टूड। अब हम दो केस स्टडी लेके, हमने दो केस स्टडी इसमें रखी है।
टिपिकली हमने कॉन्सेप्ट्स लीगलीज डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करने के लिए वी पुट दीज टू केस स्टडीज। पहली केस स्टडी में एग्जांपल है, दो पेरेंट्स हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, उनके दो चिल्ड्रन हैं, एक मान लीजिए मेजर है, एक मान लीजिए माइनर है। जो मेजर चाइल्ड है मान लीजिए उसका एज अराउंड 18 है, एंड जो माइनर चाइल्ड है वो एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, उसका एज अराउंड 12 है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन का एस्टेट प्लान कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो हम स्टेप्स के थ्रू जाएंगे, सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम रेकमेंड करते हैं कि पेरेंट्स विल बनाएं। मान लीजिए अगर आज मैं और मेरी वाइफ हैं जिनके दो बच्चे हैं, मेरे पास जो एसेट्स हैं वो ऑब्वियसली मैंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्ड किए हैं, जो मेरी वाइफ के पास एसेट्स हैं ऑब्वियसली वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्ड कर रही है। इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब मेरे पास मान लीजिए एक बैंक अकाउंट है जिसमें मेरे पास कुछ पैसा है, मेरी वाइफ के पास कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास है, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ एक वाइफ एंड हस्बैंड दोनों विल बनाएं। विल में वो ये लिखें कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को जाएगी एंड वाइफ की सारी प्रॉपर्टी हस्बैंड को जाएगी। एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उनकी सारी प्रॉपर्टी वाइफ के पास जा सके, एंड वाइफ अपनी विल में ये प्रोवाइड कर दे कि बच्चों को कैसे देनी है। और अगर वाइफ की किसी रीजन की वजह से डेथ हो जाए तो वाइफ की सारी प्रॉपर्टीज हस्बैंड के पास चली जाए एंड वो अपने लाइफ टाइम में डिसाइड कर पाए कि बच्चों को कैसे देनी है। एक और चीज जो हम रेकमेंड करते हैं कि इवन दो आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप फॉल बैक लेगेटीज भी प्रोवाइड करें। मान लीजिए अगर मेरी वाइफ और मेरे और मेरी वाइफ की डेथ एक साथ हो जाए तो वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी वो भी मैं विल में प्रोवाइड करूंगा। उसको टिपिकली प्री डिसीज्ड क्लॉज कहते हैं, जो एक विल के अंडर होता है, वो आप प्रोवाइड करें आपकी विल के अंदर। विल में ऑब्वियसली आपको एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट करना होगा, आपको गार्डियन भी अपॉइंट करना होगा। आप फॉल बैक एग्जीक्यूटर एंड फॉल बैक गार्डियन जो हमने बात करी वो भी आप अपॉइंट करें। रेकमेंडेड है आज की डेट में ही आप उन एग्जीक्यूटर को, आप उस गार्डियन को बताएं कि आप उसमें आप एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड हैं। सो प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमको कल कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, वो आप आज की डेट में अपॉइंट करें। आपकी जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड है प्लीज 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 इंश्योर कीजिए कि गार्डियन स्पेशली जो आप अपॉइंट कर रहे हैं फेमिलियरिटी हो चाइल्ड के उसके साथ, एंड आज से ही वो फेमिलियरिटी बनी रहे। मान लीजिए आज से आपने उस गार्डियन को आपके लाइफ में इन्वॉल्व नहीं किया, फॉर सम रीजन 10 साल बाद या 5 साल बाद उसको गार्डियन को उस बच्चे का सारा गार्डियनशिप लेना हुआ तो बच्चा फेमिलियर नहीं होगा। तो इसलिए रेलेवेंट है कि प्लान आप आज से करें ताकि आप किसी एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर दें जो आपके बच्चे का गार्डियन हो, एंड वो फेमिलियरिटी बनी रहे ताकि बच्चे को भी ऑकवर्ड नहीं हो एंड गार्डियन को भी ऑकवर्ड नहीं हो उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए। सेकेंड चीज जो हम रेकमेंड करेंगे, हमने बात करी जैसे पेरेंट्स एक ट्रस्ट सेटल कर सकते हैं, पेरेंट्स इंडिविजुअली ट्रस्टीज हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ऑब्वियसली वो एक फॉल बैक ट्रस्टी भी अपॉइंट करेंगे ट्रस्ट के अंदर जो उनके जाने के बाद या इवन इन देयर लाइफ टाइम ट्रस्ट के डिसीजंस देगा। एक सवाल जनरली आता है कि मान लीजिए जो एल्डर सिबलिंग है वो ओवरसीज है, वो मान लीजिए स्टडीज के लिए गया हुआ है या वो ओवरसीज सेटल होना चाहता है, क्या वो अपने बच्चे का जो आपका जो सेकंड चाइल्ड है उसका गार्डियन हो सकता है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज हाँ। A minor cannot be a guardian for a minor, but a major, even though that person is not in India, can be a guardian for a minor. Basically, एक NRI इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल जो ऑफशोर है या वो इंडिया में नहीं है, वो फिर भी गार्डियन बन सकता है अपने जो आपका बच्चा है या एक माइनर चाइल्ड का। वो कैसे गार्डियनशिप करेगा वो एक डिफरेंट सवाल है, बट लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इंडिया आने को तैयार है या बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है तो वो आपके बच्चे का गार्डियन बन सकता है। अगर दोनों चिल्ड्रन माइनर हैं तो ऑब्वियसली आपको किसी मेजर को अपॉइंट करना होगा जो 18 साल के ऊपर है एज अ गार्डियन फॉर द माइनर चाइल्ड। क्या नॉन रेजिडेंट एल्डर सिबलिंग ट्रस्टी बन सकता है? अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सकता। ट्रस्ट एक्ट कैटेगोरिकली प्रोवाइड करता है कि प्रॉपर ट्रस्टी वो होता है जो इंडिया में रहे या जो काफी लंबे टाइम तक 6 महीने 7 महीने तक इंडिया में रहा हुआ हो। तो एल्डर चाइल्ड जो अब्रॉड है, मान लीजिए सिबलिंग है, वो ट्रस्टी नहीं बन पाएगा अनलेस अनटिल वो इंडिया आना चाहता है या इंडिया में सेटल होना चाहता है। सो इवन दो वो गार्डियन बन सकता है, दैट पर्सन कैन नॉट बी अ ट्रस्टी। तो आपको रेकमेंडेड है कि इंडियन रेजिडेंट को आप एक ट्रस्टी बनाएं।
कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसा कि हमने बात करी, आप लेटर ऑफ इंटेंट लिखें, उसमें आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को बैकअप करके सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी या ओरिजिनल उस लेटर ऑफ इंटेंट में डॉक्यूमेंट के साथ रखें और उस रेगुलरली उस डॉक्यूमेंट को पीरियोडिकली अपडेट करते रहें। एक और प्रैक्टिकल टिप है, जो प्रैक्टिकल तो नहीं है, जो आई थिंक बहुत रेलिवेंट है, जो हमने इस पूरे प्रेजेंटेशन के थ्रू बोली है आपको, वो है कि प्लान आज से करना स्टार्ट करें। आज ट्रस्टेड एडवाइजर को अपॉइंट करें, एटलीस्ट आज ट्रस्टेड एडवाइजर को आइडेंटिफाई करें और उनको रेगुलरली आपके एस्टेट प्लान के बारे में अपडेट करते रहें। सो प्लान नाउ इज द की एंड दैट इज द मैसेज। एक मैसेज अगर आप लेना चाहें इस पूरे प्रेजेंटेशन से, तो वो यही होना चाहिए कि एस्टेट एंड सक्सेशन प्लानिंग आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लान करें। एक दूसरी केस स्टडी हम लेंगे, दिस इज मोर फॉर पेरेंट्स हु आर सिंगल पेरेंट्स। मान लीजिए एक मिस बी हैं जो एक सिंगल मदर हैं, उनका एक चाइल्ड है स्पेशल नीड्स का, उनके ज्यादा कोई रिलेटिव्स है नहीं या ज्यादा वो ट्रस्टेड एडवाइजर कोई है नहीं जो उनके बच्चे का ध्यान रख सकें। उस केस में उनको क्या करना चाहिए? उस केस में मान लीजिए, इसके लिए मैंने अज्यूम करके चला है कि उनके पास एक बेसिक विल इन प्लेस है, पर वो चाहती हैं कि उनके डिमाइस के बाद उनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। सिंपल है, अगर विल में गार्डियन ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर अपॉइंटेड नहीं है तो आप अपने विल को या तो फ्रेश विल लिखिए या विल को कोडिसिल के थ्रू अमेंड कीजिए और एक गार्डियन अपॉइंट कीजिए। नाउ टिपिकली लोग बोलते हैं कि गार्डियन सिर्फ माइनर चिल्ड्रन के होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप अपने विल में एक गार्डियन अपॉइंट करना चाहते हैं तो आप एक डेट डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं चाहता हूं कि मेरे स्पेशल नीड्स चाइल्ड के लिए गार्डियन उसकी लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट हो, तो वो भी हो सकता है। 25 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, आप कोई भी आपकी विल में गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं फॉर वॉट एवर एज। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है गार्डियन के ऑब्लिगेशन खत्म हो जाते हैं। कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियंस टिपिकली आर अपॉइंटेड फॉर द चाइल्ड्स मेजॉरिटी। 18 साल के बाद जनरली कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियंस अपने ड्यूटीज को रिलिंक्विश कर देते हैं। बट टेस्टामेंट्री गार्डियंस, जो आप एक टेस्टामेंट यानी जो विल है उसके थ्रू अपॉइंट करते हैं, वो रेगुलरली आप किसी भी एज के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। ट्रस्ट अगेन सिंपल डॉक्यूमेंट है जो सेटल किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, वो ये है कि आप अपने ट्रस्ट के ट्रस्टी को एक प्रोफेशनल ट्रस्टी भी रख सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रस्टीज जनरली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है जो आपके बच्चे का ध्यान आपके जाने के बाद रख सके, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं। आप जनरल गूगल करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे एनजीओज भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट बॉडीज भी हैं जो प्रोफेशनल ट्रस्टी एंड प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली वो एक फीस चार्ज करते हैं उसके लिए, जो कभी कभी थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट 1-2 साल के लिए तो नहीं होता है, ट्रस्ट काफी लंबे टाइम के लिए होता है। तो वो हर साल एनुअली या बाय एनुअली या मंथली फोर्टनाइटली बेसिस पे फीस लेते हैं। बट पुश कम्स टू शव, अगर आपको लगता है कि देयर इज नोबडी जिसको आप ट्रस्ट करते हैं कि आपके बच्चे को रेगुलरली इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या रेगुलरली इनकम प्रोवाइड करेंगे, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रस्टी भी कंसीडर कर सकते हैं। ये केस स्टडी हमने स्पेसिफिकली इसीलिए ली क्योंकि मान लीजिए मिस बी एक सिंगल मदर है जिनके कोई रिलेटिव्स को वो ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, तो एक प्रोफेशनल ट्रस्टी या एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर भी, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर वो होगा जो आपके बिल का एग्जीक्यूटर बनेगा एंड प्रोफेशनली विदाउट एनी बायस और विदाउट एनी मैलिस इन विल जनरली वो आपकी बिल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपकी बिल के एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अदर कंसिडरेशंस अगेन सिमिलर कंसिडरेशन होंगे इस फैमिली के लिए भी। लेटर ऑफ इंटेंट, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कोलेट करना एंड प्रोफेशनल ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट या प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर का अपॉइंटमेंट कंसिडर करना। सो ये 2 केस स्टडी हैं जो हमने सोचा कि प्रैक्टिकली कैसे एस्टेट प्लानिंग होती है वो हम आपको इसके थ्रू बता सकें। So this is it from our end from the presentation bit. अगेन ये लास्ट स्लाइड जो हमने पूरे प्रेजेंटेशन में जो मैसेज दिया वो इस लास्ट स्लाइड में समाइज करने के लिए, प्लानिंग आज की डेट में, अभी की डेट में जरूरी है, तो प्लीज जितना जल्दी हो सके प्लीज प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। सचिन, सिंस वी हैव, हम लोग के पास स्टिल थोड़ा टाइम है एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, why don't we take some common questions जो बहुत लोगों ने पूछा है? Just taking one minute there, I Sure. wanted to thank Sachin for a brilliant, fantastic presentation. It was superb. It covered everything, Sachin. Thank you so much
to both of you to have touched upon everything possible. I think these were all the questions that were in people's mind. The questions that have come in are more specific. Before we go into that, Anuj, I've requested you to start with specific ones. I would just request Darshana to run the poll question for taking feedback from the participants. Yeah, Darshana, if you could please. Sure. Yeah, I'm doing it. Requesting all the participants kindly please share your feedback. Um as I said at the beginning, it helps us to understand whether we are doing things right or not and where we are headed. Also, you will be getting a recording of this entire webinar tomorrow in your email. If you have anything further that you would like us to do for you, kindly just hit a reply and send us your mail. Uh, as Sachin pointed out, uh, the time is today. Please, please don't delay this. Whether you're doing financial planning or you're doing the entire legal planning for your child with special needs, the time is today or yesterday. Please do it right now. Don't postpone this. Just starting to discuss and getting down to doing all of this takes time. And then eventually, uh, once you've submitted the papers, even for that to come back takes minimum of 6 months to a year. Anuj, I've had some families come in, some schools who have been dealing with this challenging situation where they've reached out and said, Chitra, uh, both parents have passed away to COVID, and there is no legal documentation done for the child. So, the next person in the family wants to come take care of the child. But then what do you do now? You have to start from scratch without anyone being available. It just becomes very tedious and difficult for the person who is stepping in to take the guardianship of the child. But it's our responsibility to get this done. I know there's too much already on our plate that we're dealing with so much in terms of what to do for the child or the adult in terms of their daily life uh, itself. But then this is an additional thing that we most certainly have. Yeah, Darshana, should we start with the questions? Can I request Anuj, please? Yes, we Sure. can. Yeah. Yes, So sir. maybe first question जो हम लोग address करते हैं, a lot of questions about probate, and I think हम लोग broadly let's spend a few minutes on probate. Sure. I think लोगों का बहुत concern है, while पूरा will का process appears very very simple, at least in some cities and primarily Bombay, Calcutta, Chennai, Bangalore, few states में cities में ये presidency towns थे Britishers के time पे, यहाँ पे ये probate का rule है, and lot of hesitation लोगों के मन में रहता है on will because everything otherwise in a will is very very simple, but the moment Yes, probate review. आता, Yeah. sorry. Yeah. So the moment the probate का requirement आता है तो लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि कितना टाइम लगेगा. टू बी ऑनेस्ट हमने इंस्टेंसेस देखा है जहां प्रोबेट में 4 साल 5 साल 6 साल भी लग गया आने में. आजकल बहुत स्टैंडर्ड हो गया है. इवन इन अदर प्लेसेस रिसेंटली हम लोग एक मैटर कर रहे थे इन उत्तर प्रदेश, वहां भी बैंक्स ने रिक्वायरमेंट डाल दिया था. इट वाज नॉट रिलेटिंग टू अ स्पेशल चाइल्ड सिचुएशन, बट वहां भी बैंक्स ने रिक्वायरमेंट डाल दिया था टू ट्रांसफर एसेट की पहले आप प्रोबेट कराइए, और प्रोबेट आते आते 6-7 साल लग गया. सो दैट इज वन. मतलब टू माय माइंड, एंड सचिन यू शुड फील फ्री टू ऐड, टू माय माइंड हमने जो देखा है, जो नॉन कंटेंशियस, जो नॉन चैलेंज्ड, कोई फैमिली वालों का कोई इश्यूज नहीं है, जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, a good timeline to imagine is 1.5 साल. We've seen 18 महीना तक लग जाता है प्रोबेट आने में in Bombay at least. But this makes, and this leads me to the second question. A question था where to start, will first or trust first, and can guardians be trustee? Definitely हम लोग recommend करेंगे कि will तो आप because, and I'll give you one example, Chitra was also touching on it. अभी COVID situation में इतने कई instances हमारे पास ऐसे आए. Very recently सचिन और मैं एक instance पे काम कर रहे थे कि a person he just became unstable. He was of course old, उन्होंने will नहीं बनाया था, but then all of a sudden few other comorbidities were discovered in him and he was not in a position anymore to write a will. और फिर विल में बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप जब विल लिखें तो यू हैव टू बी अ सेन स्टेट ऑफ माइंड. इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन कि अब वो विल बना ही नहीं सकते हैं, उनके सिग्नेचर इज नॉट एबल टू साइन अ डॉक्यूमेंट.
तो उससे बेहतर होगा एटलीस्ट विल तो बना ही ले इमीडिएटली, एंड देन ट्राई एंड ग्रेजुएट जहां सब्सटैंशियल एसेट्स है, बिकॉज ट्रस्ट बनाने के लिए और ट्रस्ट में सब डालने के लिए यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग. एंड आई विल गिव यू वन इंस्टेंस. इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप ट्रांसफर करते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगता है. आप ट्रस्ट बना के उसमें भी अपने बच्चे के लिए अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो देयर इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इंसिडेंस. तो लोग ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं. अगर आप पहले से ट्रस्ट प्लान करके रखेंगे और ये प्लानिंग में टाइम लगेगा, तो आप जो फ्यूचर एसेट लेना चाहते हैं वो आप सीधा ट्रस्ट में ही ले सकते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी इंस्टेंस नहीं होगा 2 बार. सो द पॉइंट आई एम मेकिंग कि डेफिनेटली मे बी स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि विल बना दीजिए. विल इमीडिएटली एक स्टार्टिंग पॉइंट बन दीजिए, उसको हम लोग इवॉल्व करके रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मान के चले कि 1.5 साल तक लग सकता है प्रोबेट में, बट उसका भी टेम्पररी अरेंजमेंट विल में ही प्रोवाइड किया जा सकता है. और फिर कोशिश करें कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स उसको ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दें. Maybe that was my thought. Sachin, you should feel free to add. Agreed, Anuj. I mean, हमने भी बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं. प्लानिंग का फर्स्ट प्रोसेस तो विल ही होता है. आप एक बार विल बना दीजिए, एंड बहुत सारे इंस्टेंसेस में हमने ये भी देखा है कि विल कैन ऑब्वियसली प्रोवाइड कि आप विल आपकी डेथ के बाद आपके जो बचे हुए एसेट्स हैं वो आप ट्रस्ट में डाल सकते हैं. विल के अंदर बहुत बार आप एक रेजिड्यूरी एस्टेट प्रोविजन भी यूज कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है, मान लीजिए आज अगर मैंने एक विल बना ली एंड आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद आई इनहेरिट अ प्रॉपर्टी, या देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट आई बाय, जरूरी नहीं है वो विल में मैं अगेन अमेंड करके उसको स्पेसिफिकली प्रोवाइड करूं. मैं विल में ये सिचुएशन प्रोवाइड कर दूंगा कि जो भी मेरा एसेट है जो इस विल में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है वो या तो XYZ को जाएगा या फिर ये ट्रस्ट जो मैंने बनाया है उसको जाएगा. 2 चीजें यहाँ रेकमेंडेड है. अगर आपने विल में आपको ट्रस्ट का कोई रेफरेंस दे रहे हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ट्रस्ट आप बनाएं, और अगर क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं है तो वो लेगेटी को नहीं मिलेगा एंड दैट बिकम्स इशू. बट अदरवाइज फ्रॉम अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव ट्रस्ट इज secondary and a will is probably the foremost. And as far as again as Anuj pointed out, probate takes time. डिपेंडिंग ऑन कितना ऑब्जेक्शन लोग रेज करते हैं, कितना ऑब्जेक्शन लोग नहीं रेज करते हैं. जनरली बहुत सारे सिचुएशंस में कभी कभी एकदम स्मूथली भी हो जाता है, कोई इशू नहीं होते हैं. एवरीथिंग गोज पर प्लान. न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, कोर्ट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो कुछ ही महीनों में वो एब्सोल्युटली खत्म कर देते हैं. बट टिपिकली जो टाइमलाइन अनुज ने मेंशन करी उसमें लगता है नॉन प्रोबेट जुरिस्डिक्शंस में बैंक्स एंड स्पेशली म्यूचुअल फंड्स एंड लॉकर्स एक्सेट्रा के लिए लोग इंसिस्ट करते हैं प्रोबेट के लिए. 1-2 इंस्टेंसेस में एटलीस्ट पर्सनली मैंने देखा है, बैंक को अगर आप समझाने की कोशिश करें कि नहीं प्रोबेट जरूरी नहीं है इस स्टेट में, आप क्यों हमसे प्रोबेट मांग रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सेट स्टैंडर्ड से चलते हैं. मतलब कभी उन्होंने कहीं देखा होता है या उनके कभी सीनियर बोलते हैं नहीं नहीं प्रोबेट लेके आओ, विल का प्रोबेट कराए हुआ, तो वो प्रोबेट मांगते हैं. एज लॉयर्स समटाइम्स पुश कर सकते हैं आप उनको कि नहीं प्रोबेट जरूरी नहीं है, हम क्यों प्रोबेट करें. बट अगर वो इंसिस्ट करते हैं तो देयर इज नो वे आउट, आपको प्रोबेट लेके आना ही पड़ेगा. बट कपल ऑफ इंस्टेंसेस जो मैंने एडवाइस कर रहे थे हम लोग राजस्थान में, बैंक ने बोला प्रोबेट लेके आओ, हमने पुश किया था. एक इंस्टेंस में तो बैंक मान गया, दूसरे इंस्टेंस में बैंक ने बोला नहीं प्रोबेट की जरूरत है. तो अगेन डिपेंड्स ऑन इंस्टेंस टू इंस्टेंस. See, one of the things जैसे इसको extend करने के लिए like we're discussing कि एक small rather than making lot of, हो सकता है कुछ लोगों ने already कुछ planning चालू कर दिया है, वो कुछ stage पे हो. The idea is to start and then continue to improve. मैं आपको एक example देता हूँ. Trust में बहुत लोगों का concern आया कि आप trustee पे कैसे fully rely करेंगे, trustee की क्या accountability है. तो there is a concept of a protector. जब स्टार्टिंग पॉइंट के बाद जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं तो एक एक करके ये क्वेश्चंस फिर हम लोग एड्रेस करते हैं ट्रस्ट डीड में या शुरू में क्वेश्चनर बना के. ट्रस्ट में हमेशा एक कॉन्सेप्ट, 2 चीजें होती है कि लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ विशेस जिसको बोलते हैं, और एक होता है प्रोटेक्टर. हम लोग ट्रस्ट डीड में कभी कभी एक प्रोटेक्टर का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं. प्रोटेक्टर का रिक्वायरमेंट ये रहता है कि ट्रस्ट को रिलेटेड ट्रस्टी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है तो प्रोटेक्टर वीटो कर सकता है, या प्रोटेक्टर उसको वॉच कर सकता है, या एनुअल ऑडिट कर सकता है. तो उसको हम लोग और इनोवेट करके ये सब आइडियाज भी ला सकते हैं कि एक और एडेड आपने लगा दिया. लेट्स से कोई पर्सन आपके नेटवर्क में है जो फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं एज अ ट्रस्टी, बट मे बी थोड़ा बहुत
या फिर कोई NGOs में या फिर अदर रिनाउंड पीपल इन द सोसाइटी, उनको प्रोटेक्टर का रोल दे दें कि आपका बस लिमिटेड है, आप थोड़ा ओवरसाइट रखें सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजन में। फिर जैसे हम इसको इनोवेट करते हैं, फिर ये लेटर ऑफ विशेस का कॉन्सेप्ट आता है, ऑल्दो नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, लेकिन उसमें पूरा आप स्टोरी लिख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि ये इसके लिए यूज हो। वी आर वेरी कंसर्न कि पोस्ट मैरिज अगर इफ द स्पेशल चाइल्ड अंडरगोज अ मैरिज, ही शुड नॉट बी टेकन एडवांटेज ऑफ, तो ये सब प्रोटेक्शन हो, इस तरह से ये सब एसेट्स यूज हो। तो through these letter of wishes, through protector, through a trust structure, as you graduate from a will to a trust structure, क्योंकि trust में थोड़ा planning लगेगा, lot of these issues start getting addressed. सर एक चीज और मैं प्रोबेट के लिए ऐड करना चाहूंगा। एक दो क्वेश्चन मैं देख रहा था, लोगों के अमूमन ये सवाल होते हैं कि मैं बॉम्बे में रेजिडेंट हूं, अगर बॉम्बे में प्रोबेट की जरूरत है तो क्या मैं नॉन प्रोबेट जुरिस्डिक्शन में जाके अपना बिल लिख सकता हूं, उसके लिए प्रोबेट की जरूरत नहीं? ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर्टी एंड सब्सटैंशियल एसेट्स बॉम्बे में सिचुएटेड हैं तो ऑब्वियसली आप को उसके लिए प्रोबेट की जरूरत है। आपका मान लीजिए अगर बैंक आपका बॉम्बे में है तो वो बैंक वाले आपसे बॉम्बे में प्रोबेट मांगेंगे। तो जस्ट बिकॉज आपने राजस्थान में जाके या मान लीजिए मध्य प्रदेश में जाके एक बिल एग्जीक्यूट कर ली है, डजंट मीन कि आप उस प्रोबेट के रिक्वायरमेंट से हट जाएंगे। एसेट्स जहां है वहां आपको प्रोबेट की जरूरत पड़ेगी। Anuj, this one about does will override nomination? A lot of people ask this question कि will की जरूरत क्या है? Yes, that's a very pertinent question. Nomination सब कर दिया है, मैंने joint holder सब assets में है, जरूरत ही नहीं है। Oh, that's a very important question. और मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि नॉमिनेशन इज नॉट इक्वल टू सक्सेशन। आइए आप समझ लें, आपने किसी को नॉमिनेट कर दिया अगर अपने बैंक अकाउंट में, या आपने नॉमिनेट कर दिया है हाउसिंग सोसाइटी के प्रॉपर्टी पेपर्स में, नॉमिनी का जो रोल होता है, म्यूचुअल फंड में आपने किसी को नॉमिनी डिक्लेयर कर दिया, कई बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, अदर कोर्ट्स के जजमेंट है जहां पे ये कैटेगोरिकली अब पोजीशन सेटल हो चुका है कि नॉमिनी इज इक्वल टू ट्रस्टी। नॉमिनी का काम लार्जली यही होता है कि वो एसेट रिसीव करेगा और आपके विल के हिसाब से बांट देगा। और अगर आपका विल नहीं है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदूज के केस में जो सचिन एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर जो लोग पास अवे विदाउट डूइंग अ विल, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में वो क्लास 1 एयर्स होते हैं, फिर क्लास 2 एयर होते हैं, उसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है इन लोगों में कैसे वो एसेट बटेगा। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है नॉमिनीज वर्सेस विल में जो आप लेगेटी अपॉइंट करते हैं। नॉमिनी का रोल सिर्फ ट्रस्टी का रोल होता है। आपके जो बैलेंस फैमिली मेंबर्स हैं वो सब क्लेम कर सकते हैं एसेट थ्रू द नॉमिनी। अनुज, you are extending this conversation. I'd like you to please आप ये भी बताओ कि यूजुअली ये माना जाता है कि एक ही विल जो कमा रहा है पैसा, जिनके नाम पर एसेट्स हैं, उनका विल बनाना बस है, या फिर वो जॉइंट विल्स के बारे में बात करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का जॉइंट विल बनाते हैं। तो आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग टू पेरेंट्स कि नहीं, आप दोनों को विल बनाना है। तो इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करेंगे, स्पेशली स्पेशल नीड्स के केस में क्यों इसकी जरूरत है? श्योर एंड बिल्कुल मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्ट केसेस में हम लोग क्या एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमने लार्जली देखा है कि हस्बैंड जो अर्निंग मेंबर है, सपोज हस्बैंड है, तो पैरामाउंट तो ये है उसका विल हो, लेकिन लार्जली हमने देखा है कि उसके बाद वो अपने विल में ये दे दे कि मेरे बाद सारा एसेट मेरी वाइफ को चले जाए और वाइफ का एक पैरेलल विल रहे। और लाइकवाइज वाइफ के विल से, सो बेसिकली आप जंप द गन ना करें। जो सीक्वेंशियल है वो उसमें ये रहता है हस्बैंड के बाद, अनलेस आप एसेट स्प्लिट कर रहे हैं, सबको आज ही प्री डिफाइन कर दे रहे हैं, जनरली बेटर कॉन्टेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्ट ये रहता है कि हस्बैंड के बाद वाइफ के पास आ जाए और वाइफ आगे उसी समय अपना विल बना के रख दे। ऑफ कोर्स उसमें वो रिस्क रहता है कि वाइफ के पास जब एसेट आ गया हस्बैंड के बाद तो शी कैन ऑलवेज चेंज हर विल, बट अगर फैमिली में वो सब कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है तो बेटर ये रहता है हस्बैंड का भी विल रहे, फिर वाइफ का भी विल रहे। बहुत बार ऐसा होता है हस्बैंड का लेट्स से इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें वाइफ नॉमिनी है और आपने वाइफ का विल बनाया ही नहीं, तो एसेट वाइफ के पास आ गया बट आगे जो ट्रांसफर होना है वहां पे गैप रह गया। तो ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप दोनों का विल बनाए। Fantastic. Another important thing in our the families ना, it's quite possible that आगे हम जिस सिटी में हम काम कर रहे हैं या हम स्पेशली सटार के साथ जी रहे हैं, हम वो सिटी छोड़ के we will actually move to another city.
राइट? तो एसेट्स यहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी रहेंगे, राइट? राइट तो फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैं ट्रस्ट कहाँ पर बनाऊं? तो आज अगर मैं बॉम्बे में हूँ और मैंने यहाँ पर ट्रस्ट बनाने का सोचा और मैंने सब प्रोसीडिंग शुरू कर दिए, या फिर यूजुअली ये तो होल्ड पे जाता ही है, पीपल जस्ट राइट डोंट, इनएक्शन हो जाता है, एंड राइट देन आई एम गोइंग टू सेटल से इन बैंगलोर. So what is your advice to parents? What should they do? सी आई थिंक आज के तारीख में इतनी मोबिलिटी की वजह से लोग मूव करते ही रहेंगे, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एसेट होगा. लॉजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे आप स्टार्ट कर दीजिए. आप बॉम्बे में हैं, आपके एसेट कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बॉम्बे में ट्रस्ट सेटल कर दीजिए. ट्रस्ट इज लार्जली, जैसे आज एक ह्यूमन बीइंग, आप बॉम्बे में रहें या कहीं भी रहें और आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एसेट्स खरीद सकते हैं. ट्रस्ट भी एज सिमिलर है, मतलब लॉज विल अप्लाई, लेकिन ट्रस्ट कलकत्ता में भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है. ट्रस्ट का इनकम कहीं और से भी आ सकता है. तो इट डजंट मैटर, आप मूव करते रहेंगे, बट ट्रस्ट का एक बेस बन जाता है. वो कहीं का लॉ इवॉल्व कर लेता है, बट इट्स अ वेरी फ्लूइड स्ट्रक्चर. उसमें कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका एसेट सारा बॉम्बे के लिए आपको सेपरेट ट्रस्ट चाहिए और बाहर के लिए सेपरेट ट्रस्ट चाहिए. थोड़े कॉम्प्लेक्सिटीज तब आ जाते हैं जब ऑफशोर एसेट्स हो जाता है. वो हम लोग मे बी सेपरेटली ले सकते हैं, क्योंकि ऑफशोर एसेट्स के लिए उसमें कॉम्प्लिकेटेड एक्सचेंज कंट्रोल लॉज आ जाते हैं एंड ऑल दैट. बट एज लॉन्ग एज विद इन इंडिया है, देयर इज नथिंग टू वरी. Fantastic. A very simple question, but very important for all of us because this becomes so challenging. Trust बना दिया और उसका बैंक अकाउंट खोलने के लिए हम अभी बैंक को जा रहे हैं. तो शिशिर मिश्रा जी पूछ रहे हैं कोलकाता से कि डू आई नीड अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट? What will the bank act on? Can I just land up with a trust that has been drawn up? So legally the trust needs to be registered, right? Before I go to open the bank account or not? See, kahin again, Chitra, to answer that question, legally to trust register, there is no requirement to register a trust. But I think, because ये सब procedures हैं, a lot of these thoughts are changing. ये सब old school largely, PSUs में हमेशा ये रहा है, हम लोग फेस करते हैं कि उनको registered trust deed चाहिए ही चाहिए. तो ये बैंक वाले अपने रिक्वायरमेंट ला देते हैं, बट अंडर लॉ कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. पहले मे बी सचिन फील फ्री टू चाइम इन इफ यू हैव टू, बट मैंने भी पहले ये सुना है, आई नो ऑफ सेवरल ट्रस्ट जो हमने बिल्कुल अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया है. बट हमने भी इशू फेस किया है जब पैन कार्ड लेने गए ट्रस्ट का, फिर अथॉरिटीज ने वहां रिक्वायरमेंट डाल दिया कि नहीं आप रजिस्टर कराइए. बट रजिस्ट्रेशन, अगेन रजिस्ट्रेशन में सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इट्स अ एक्सपेंस, फ्यू थाउजेंड रुपीस का खर्चा है. वहां पे लाइन में लग के रजिस्टर, जैसे आप प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं वैसे ट्रस्ट डीड रजिस्टर होता है. और एवरी टाइम जब आप चेंज करते हैं तो अमेंडमेंट के लिए वापस एक बार वो लाइन में लगना पड़ता है रजिस्टर कराने के लिए. बट अदर देन दैट, रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज अ फेयरली सिंपल प्रोसेस. आप जब लीज करते हैं प्रॉपर्टी की तो आप रजिस्ट्रार के पास जाते ही हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रार के पास जाते ही हैं. सो इट्स अ फेयरली सिंपल प्रोसेस. Agreed, absolutely. See, one of the things, unrelated खाली मैं, what I'll say is more and more people generally, हमारे यहाँ हमने हमेशा देखा है कि हमेशा एक generational, because of the way Indian tradition and Indian societies have evolved, बहुत बार हम लोग death, post death वाले issues डिस्कस नहीं करना चाहते हैं. बट हमने देखा है कि एटलीस्ट फैमिलीज विद स्पेशल चिल्ड्रन आर वे मोर ओपन. सो व्हाट वी सी कि आज जो यंगर फैमिलीज हैं, जो यहाँ पे बच्चे वेस्टर्न एजुकेशन अचीव करके आए हैं, या वहां पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा ये कम्युनिकेशन लार्जली होने लगा है. या फिर लार्जली वी फील इन दैट सेंस कि जो थोड़े मॉडर्न अप्रोच ले रहे हैं, फैमिलीज विद स्पेशल चिल्ड्रन डिस्कस दिस मोर ओपनली. सो मैं आपको ये एंकरेज करूंगा कि some of these discussions start soon, and there should be no hesitation Absolutely. in So discussing. important, Anuj, because Yeah. I always also reach out when we talk to say that अगर आप दोनों ने बात नहीं किया, हस्बैंड एंड वाइफ ने ही बात नहीं किया, और अपने इमीडिएट फैमिली के साथ जो अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके साथ पहला जितना हो सके बात करो कि क्या होगा अगर वो एक सर्कमस्टेंस आ गया, सिचुएशन आ गई है, तो फिर आप क्या करोगे. एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट टू एम्पावर ईच अदर. बहुत सारे केसेस में ऐसे हो जाता है कि सडन डेथ हो गया, तो देन द वाइफ इज लेफ्ट टू टेक द डिसीजन जो वो नहीं ले पाती, एंड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल टेक द डिसीजंस फॉर हर. तो Right. आपके हाथ में कुछ रहता ही नहीं है, स्पेशली अगर बिजनेस फैमिलीज हैं या फिर जॉइंट फैमिलीज हैं, तब यू आर लिटरली
you have to go with the flow कि हाँ ये हो गया, अभी मेरा लाइफ इस दिशा में जा रहा था, अभी यहाँ जा रहा है। Yeah. तो जितना जमेगा, वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी बात करो, जो भी है लिखो। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव ब्रॉट टू द टेबल टुडे इज मेक इट सो सिंपल। ये सिंपल हो सकता है, सिंपल तरीके से हो सकता है। आज लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ब्यूटिफुली से सचिन एक्सप्लेन्ड अबाउट द letter of intent. So there are people asking, are letter of intent and letter of wishes the same? So I guess it is the same, but then start writing. अभी लिखो कि कौन आपके लाइफ में है, जो whoever you think are required for your child, please go ahead there. Another thing on your behalf, Anuj, I'm sharing what you said, that you all have said you will be sharing a draft will, right, Sachin? Yeah, absolutely. If you want, I can share the screen now if time permits. Otherwise, I can share it with. Please do. So if you can see my screen. और you know, just to clarify, हम लोग वैसे भी सोच रहे हैं what we will do after this call, कि हम लोग एक ड्राफ्ट आपको सर्कुलेट कर देंगे. Yes, we will share it with all the attendees. So Sachin, you can quickly walk through. Yeah. But so हम लोग ये सर्कुलेट करेंगे ड्राफ्ट. Sure. So this is basically a template will. Obviously, this is made on a no names basis by KCO. बेसिकली इन द स्टार्टिंग पैराग्राफ आप बस विल में लिखिए कि आप कौन हैं, आप किसके, मतलब आपका फादर मदर का नेम, आपकी एज, आपका रिलीजन अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम है तो आप सिर्फ 1/3 कर सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एड्रेस आपका क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, एंड बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन दैट वी आर डूइंग दिस बिल ऑन दिस डेट। अगेन डेट इज रेलिवेंट बिकॉज अगर आपने पहले एक बिल सेटल करी है या आपको बाद में एक बिल सेटल करनी है या चेंज करना है तो डेट बिकम्स वेरी रेलिवेंट। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज जनरली दैट ओनली। देन कम्स द बेसिक पार्ट इन विच आप ये लिखते हैं कि ये बिल इंडियन लॉ को गवर्न करेगी। देन आप में अगर कोई और बिल अगर आपने बनाई है तो आप यहाँ रेफरेंस दें। जनरली अगर ऑफशोर एसेट्स हैं तो वी रेकमेंड इंडियन बिल अलग हो, ऑफशोर बिल अलग हो, पर अगर आपका एक ही बिल है तो यहाँ पे आप अप्रोप्रिएटली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ये बिल किसी और को ओवरराइड कर रही है तो वो भी आप अपफ्रंट वेरी इजीली प्रोवाइड कर दें। ये वेरियस इंस्टेंसेस के लिए हमने क्लॉजेस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने कोई बिल बनाई है तो क्लॉज 3A यूज कर सकते हैं, अगर आपने रिवोक करना चाहते हैं तो आप क्लॉज B यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस विल में आप ये बताएंगे कि आप कौन है, आपने पहले कोई विल बनाई है, अगर हाँ तो उसका क्या होगा, और अगर नहीं तो ये आपकी लास्ट विल है। ये एक जनरल डिक्लेरेशन आता है कि आप एक गुड हेल्थ और साउंड माइंड और कैपेसिटी के हैं। दिस इज अगेन लीगली रिक्वायर्ड। जैसा कि वी स्पोक अर्लियर, बहुत सारे इंस्टेंसेस में एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी आप एनेक्स कर सकते हैं एक बिल के साथ। डॉक्टर ये सर्टिफाई करता है कि आप एक साउंड माइंड एंड कैपेसिटी के थे जब आपने ये बिल सेटल करी। Then is the standard clause for the family. You are married to whom you have XYZ children. Basically, who your immediate family is. It's ideal and it's good practice to set out in your will. Then comes appointment of executor. If you want a sole executor, you can have a sole executor. If आपको multiple executors चाहिए तो multiple executor कर सकते हैं। एक चीज जो हम recommend करते जा रहे हैं वो ये है कि आप एक alternate executor provide करें। For instance, अगर ये executor pre-decease कर जाता है मुझे, या अनेबल और अनविलिंग हो अगर मेरे एसेट का ध्यान रखने के लिए, तो मैं इन एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करूंगा। अगेन फॉल बैक एग्जीक्यूटिव जरूरी नहीं है कि 3-4 हो, जरूरी नहीं है कि 5-6 हो, एक भी फॉल बैक एग्जीक्यूटिव है तो वो कभी कभी इनफ होता है, बट एक बैकअप एग्जीक्यूटिव प्लीज आप अपॉइंट करें। ये जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं एग्जीक्यूटर के लिए कि आप मेरे जाने के बाद मेरे फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे करें, मेरी जितनी भी डेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उसको पे करें, और उसको पे करने के बाद जो मेरा एसेट बचता है वो जैसे मैंने बिल में लिखा है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। इंडियन एस्टेट, क्योंकि ये बिल इंडियन बिल है, इंडियन एस्टेट को डील कर रही है, ये जनरली मीट ऑफ द बिल होता है जहां पे आप बात करते हैं कि आप किसको देना चाहते हैं, किस प्रपोर्शन में देना चाहते हैं। आपने देखा जैसे इस बिल में भी मैं ये जनरली, मैंने क्लॉज 12 में लिखा है कि मैं जनरल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ XYZ को 12.1 में, बट अगर 12.1 जब मेरी डेथ हुई और बिल को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने की स्थिति आई,
अगर मेरा जो 12.1 में जिसको मैंने अपॉइंट किया वो नहीं हो तो मुझे किसको अपने एसेट देने हैं। तो जैसे अपन एग्जीक्यूटर और गार्डियन के लिए करते हैं, वैसे ये प्री डिसीज्ड क्लॉजेस लेगेटीज के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। जनरली वो यहाँ आते हैं। दिस इज जनरल बिक्वेस्ट। आप कुछ स्पेसिफिकली बिक्वीथ करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं अपनी गाड़ी XYZ को वो जहां रह रहा है उसको यहाँ देना चाहता हूँ। Whenever you identify a legatee, please identify it with the full name and the address, at least the then known address. It is very relevant for identification. Especially people may have similar sounding. Generally लोग लिख देते हैं I give this to Rahul. There may be 2 Rahuls in the family. तो इसलिए it's very important to specify specific bequest. आप किसको दे रहे हैं, किस proportion में दे रहे हैं। देन ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी का एक क्लॉज होता है जो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत रेयर सिचुएशन होती है, बट क्योंकि टेम्पलेट विल है, हम हर इवेंचुअलिटी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्लॉज 14 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी बेनिफिशियरी या कोई भी लेगेटी एट दैट डेट अलाइव नहीं हो तो ये एक्स आदमी को जाना चाहिए। So that is what it provides. Obviously, we will further simplify this when we share it, but this is just a sample will. 15 number clause is the residuary clause that I was just speaking about. Basically, वो ये बोलता है कि आज की डेट में मेरे पास ये एसेट हैं जो मैंने इस विल के थ्रू बिक्वीथ किए हैं, बट अगर कल को मेरे को एडिशनल एसेट मिल जाते हैं या फिर मैं कुछ इनहेरिटेंस कर लेता हूँ या कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी कोई और मेरे नाम करके चला जाता है तो वो Y पर्सन को जाने चाहिए या वो Z पर्सन को जाने चाहिए। इससे एडवांटेज ये है कि आपको बार बार अपना विल चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप एक जैसे मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ और मेरा एक बच्चा है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि कोई फर्दर एसेट आते हैं तो मेरी वाइफ को जाएंगे, अगर मेरी वाइफ मुझे प्री डिसीज कर जाए तो मेरे बच्चे को डायरेक्टली जाएंगे। तो मैं ऑलरेडी उस सिचुएशन को कवर कर दिया। ये कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हैं जो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। दिस इज मोर फ्रॉम अ गुड स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव। बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं कि एग्जीक्यूटर की कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे एग्जीक्यूटर को मैं कुछ दे रहा हूं तो मैं आउट ऑफ अपनी फ्री विल दे रहा हूं। कल को अगर मेरा एग्जीक्यूटर बनने से मना कर देता है या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता तो भी इस विल में जो मैंने अपने एग्जीक्यूटर को दिया है वो वैलिड रहे। बिकॉज लॉ ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपने अपने विल में किसी एग्जीक्यूटर को कुछ दिया है और अगर एग्जीक्यूटर रिफ्यूज कर देता है अपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, तो ये माना जाएगा कि वो जो आपने अपने विल में बिक्वीथ किया है वो एग्जीक्यूटर को नहीं दिया है। तो उसको उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, उस लीगल कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए ये एक मिसलेनियस प्रोविजंस का कुछ लिस्ट है। जनरली गुड टू हैव प्रोविजंस, ज्यादा लीगल है ये, पर जरूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये थोड़ा जरूरी पार्ट है इस बिल का, जहां पे आप लिखते हैं कि मैं अपना साइन इस कॉलम में, जो ये कॉलम आपको दिख रहा है, यहाँ आप अफिक्स करेंगे। जो आपके साइन के नीचे विटनेस हैं वो साइन करेंगे। विटनेस 1 अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे और डेट। विटनेस 2 भी अपना नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन लिखेंगे। बहुत सारे लोगों के पास अगर एसेट्स ज्यादा है तो वो एक सेपरेट एनेक्स्चर में अपने सारे एसेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अगर बिल को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो। एंड ये वो मेडिकल प्रैक्टिशनर लेटर है जो मैं बात कर रहा था, आपकी साउंड माइंड और डिस्पोजिंग पावर को बताने के लिए ये आप एनेक्स कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज हाउ अ स्टैंडर्ड बिल लुक्स लाइक। That is really helpful, and we'll definitely circulate that around to everyone. And thank you so much for spending time in excess of what was actually planned for. Thank you, Anuj. Thank you so much, Priya, for helping us arrange this. Darshana, you'd like to say something? Yeah. So I think thank you to the audience. Thanks for your questions. And I think as far as possible, Anuj and Sachin have managed to address all of it beautifully. And we hope that we will get some more occasions in the future to, talk to you guys and ask some more relevant questions from our. I'd like to just come in here. We're already seeing a lot of feedback on the chat box, and thank you, Anuj and Sachin, for taking our time for this and explaining it so beautifully and so thoroughly. And I'm sure all the participants appreciate that. One more question is that, of course, you'll share the draft of the will, and I think one person was asking if a trust draft can be shared. I'll just like to come in and say that
a draft of trust is very complicated and subjective. So for now, we're going to be sharing a draft of a will only. And I think you can reach out to Chitra if you have any specific questions. There were a lot of questions coming in. We've tried to cover the most of them. But if you have any specific questions and you require good legal assistance, and you can reach out to Chitra or reach out to iProBono. And thank you, Anuj, Sachin, and Chitra again. And thank you, all attendees. I hope this was informative for you. Thank you. Thank you. Thoroughly informative. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you, Chitra. Thank you so much. Thanks, Anuj. Thanks, Sachin. Thank you, Darshana. Thanks. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Bye-bye.